بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے اترا چاند آنگن میں بائے یاسمین نشاد۔ حواس باختہ سی مہرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگ کر گلی میں گھس گئی۔ جانے کس کا مکان تھا؟ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ بچنے کی کوئی راہ نہ پائی تو اندر گھس کر جلدی سے بند کر دیا اور خود دروازے سے ہی ٹیک لگا کر سانس روک کے کھڑی ہو گئی۔ گلی میں موٹر بائیک کا شور گونج رہا تھا اور وہ دروازے سے چمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر منیب احمد نے سامنے پھیلے کاغذات، نوٹس، کتابیں پرے ہٹائیں اور باہر آ گیا۔ اسے دروازے میں ہی ٹھٹک جانا پڑا۔ داخلی دروازے کو مضبوطی سے بند کرنے کی کوشش میں ٹیک لگائے وہ لڑکی خوف سے اڑی رنگت، دونوں ہاتھوں میں فائل دبی ہوئی، چادر سرک کر کندھوں پر آ پڑی تھی۔ باہر بائیک کے بریک زور سے چرچرائے تو منیب احمد جیسے ہوش میں آ گیا۔ آگے بڑھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دو لڑکے بائیک پر بیٹھے متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑا رہے تھے۔ وہ کچھ معاملہ بھانپ گیا۔ غالباً وہ اس لڑکی کے پیچھے تھے۔ چند ثانیے تو وہ الجھ ہی گیا کہ کیا کرے۔ اگر لڑکی کو مخاطب کرتا تو لازمی طور پر جس قسم کی ڈسٹربنس کا وہ مظاہرہ کرتی، چیخ وغیرہ کی صورت میں، تو باہر کھڑے لڑکوں کو اس کی موجودگی کی خبر ہو جاتی اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑکے دروازہ دھکیل کر اندر ہی گھس آتے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر آہستگی سے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ کھٹکے کی آواز پر مہرو نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولیں اور سامنے ایک اجنبی کو پا کر چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ منیب احمد نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چیخ دبی رہ گئی۔ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائیں گی؟ وہ ہولے سے بولا۔ مہرو نے خوفزدہ نظروں سے باہر دروازے کی سمت دیکھا۔ کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ کہیں وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں تو نہیں پھنس گئی؟ خیال روح لرزا دینے والا تھا۔ منیب احمد نے اس کا خوف چہرے پر پڑھا۔ آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھ جائیں، میں ادھر اس کمرے میں ہوں، خطرہ ٹل جائے تو چلی جائیے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ مہرو کو تو لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہیں ہے۔ بے شک اندر سے کنڈی چڑھا لیں۔ اسے متذبذب دیکھ کر اس نے پھر کہا۔ مہرو نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ منیب جا کر گلاس میں پانی لے آیا اور اسے تھما کر وہ دوبارہ بیٹھک کی کھڑکی سے گلی میں جھانکنے لگی۔ گلی میں اب کوئی نہ تھا، شاید وہ مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ آوارہ ذلیل کمینے، اس نے زیر لب ان نوجوانوں کو گالیوں سے نوازا۔ باہر آیا تو وہ گلاس یوں ہی تھامے بیٹھی تھی۔ میں نے اس میں کچھ ملایا نہیں ہے، سادہ پانی ہے۔ اگر اتنی ہی بزدل ہوتی ہو تم لڑکیاں تو گھر سے تنہا نکلتی کیوں ہو؟ ان نوجوان پر آیا غصہ اس کی جانب منتقل ہو گیا۔ مہرو نے بے حد حیران نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اپنی بے بسی کا احساس اس پر حاوی ہو گیا تھا اور وہ کوئی شوق سے تو نہیں نکلی تھی گھر سے تنہا، اور نہ ہی اسے خواہ مخواہ لور لور پھرنا پسند تھا۔ اور وہ بدچلن آوارہ لڑکے پیچھے لگ گئے تھے تو اس کا کیا قصور؟ اور اگر اس نے پناہ لے ہی لی تھی تو احسان کا بدلہ لینے کے لیے یہ حق اسے کس نے دیا تھا کہ خواہ مخواہ اس سے باز پرس کرتا پھرے؟ اس نے گلاس نیچے زمین پر پٹکا اور کھڑی ہو گئی، چادر ٹھیک طرح سے اوڑھی، بیگ شانوں پر لٹکایا اور شکریہ کہہ کر کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ مہرو کا دل کانپ گیا۔ وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ابھی ہو سکتا ہے وہ باہر ہی کہیں موجود ہوں، آپ تھوڑا صبر کر لیں، بلکہ یوں کریں دروازہ بند کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں باہر سے پتہ کر کے آتا ہوں۔ ویسے آپ کو جانا کہاں ہے؟ اگلی گلی میں، آپا جمیلہ کے ساتھ والے گھر میں، اس نے دھیرے سے بتا دیا۔ ضروری تو نہیں جیسا وہ سوچ رہی تھی وہ ویسا ہی ہوتا۔ آپا جمیلہ کے ساتھ والے گھر میں؟ وہ چونکا۔ دائیں طرف سفید گریل والے مکان میں؟ جی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ اماں یقیناً بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں گی۔ منیب احمد کے ہونٹ معنی خیز انداز میں مسکرائے، پھر جانے کیسے اس کے منہ سے نکل آیا، میں چھوڑ آؤں؟ وہ بری طرح اچھلی۔ نہیں، سختی سے کہہ کر وہ منیب کے بازو کے نیچے سے ہو کر کھلے دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کر لینے کے بعد وہ سر جھکائے سڑک پر ہو لی۔ منیب احمد کے لیے اس کا انکار اچنبھے کا باعث تھا، تو وہ کتنی دیر یوں ہی اسے جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ گلی کا موڑ مڑ گئی۔ خیر تو ہے بیٹا؟ جمیلہ آپا بڑی ہی تیز نظروں سے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھیں۔ جی۔ ایک لہجے کو تو وہ سٹ پٹا گیا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، ہاں سبزی والے کی راہ تک رہا ہوں، آج صبح ناشتہ نہیں کیا اسی لیے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔
तो बेटा ये तकलीफ तुम क्यों करते हो? मैंने तो 1000 बार कहा है 2 रोटियों का क्या है, मैं दे जाया करूंगी, मगर तुम तो मानते ही नहीं हो। मोहब्बत के इजहार का कोई लम्हा वो हाथ से फिसलने नहीं देती थी। शुक्रिया आपा। उसने बुरा सा मुंह बनाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो आपा जमीला के चेहरे पर फैली मायनी खेज मुस्कुराहट से कतन अंदाजा ना लगा सका था कि वो मेहरू को यहाँ से निकलता देख चुकी हैं और अब यूं ही अनजान बन रही थी। मुनीब अहमद ने अंदर आकर चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसे यहाँ आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर इधर उधर से उड़ती खबरें उस तक पहुंचती ही रहती थी और इन खबरों के मुताबिक सफेद ग्रिल वाले मकीन मशकूक किस्म के थे, खसूसन लड़कियां। बताने वाले ने तो उसे मुतंबा किया था, मियाँ मोहतात रहना, इन लड़कियों को तो लड़के फांसने की आदत है, लोगों के घर उजाड़ने में 1 मिनट लगाती हैं ये। और तब उसने सरसरी सा अंदाज इख्तियार किया था। उसे क्या, जो भी हो। केतली से शू शू की आवाजें उसे ख्यालात की दुनिया से बाहर खींच लाईं और वह सर झटक कर चाय बनाने लगा। आज देर हो गई बेटा? जमीला आपा मुंह में शहद घोले दीवार पार से पूछ रही थी। वो नल के पास बैठी मुंह धो रही थी। सर उठाकर आपा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, जाहिर है आपा, बाहर निकलती हूँ, सारा दिन मारा मारा फिर कर मायूस लौट आती हूँ। पता नहीं हमारे दिन कब फिरेंगे। ना बेटा, मायूसी गुनाह है, अल्लाह सब का राजिक है। तुम शुक्र करो, पेट भर खाना और आसरा तो मुयस्सर है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को यूं ही आजमाता है। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? दवा लेने गई हैं नूरी के साथ। नल बंद करके तौलिया लिए वो दीवार के पास ही आ खड़ी हुई। हाँ हाँ, जमाना बहुत खराब है बेटा, और फिर लोगों की जुबानें भी तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। किसी पर तोहमत धरते शर्म तक नहीं आती। लो भला, मुझसे बेहतर भी कोई जानता है कि तुम कितनी नेक बचियां हो। तुम्हारी अम्मा और मेरा बचपन का साथ है। यकीन करो, मैं तो जहाँ बैठती हूँ तुम्हारी तारीफें करती हूँ। ऐसी सुगड़ और नेक बचियां मैंने तो नहीं देखी। शुक्रिया आपा, ये आप ही तो हैं जिनका आसरा रहता है, वरना तो ये लोग हमें जिंदा खा जाएं। पता नहीं खुदा भी सिर्फ गरीबों को ही क्यों आजमाता है। वो आजरदा हो गई। अच्छा बेटा, कुछ खाने वाने को घर में मौजूद है या नहीं? मैं भिजवा दूं? थकी आई हो, कहाँ पकाती फिरोगी? वो उसके कुछ बोलने से कबल ही दीवार के पार गायब हो गई। वापस लौटी तो ढकी हुई प्लेट थी। लो चंदा, दोपहर में बेला ने चावल पकाए थे, कह रही थी मेहरू को जरूर दूंगी, तुम्हारा ही हिस्सा रखा था उसने। शुक्रिया आपा, आप बहुत अच्छी हैं। उसने प्लेट हाथ से ली और अंदर आ गई। जमीला आपा कार्रवाई डालकर दीवार से उतर गईं। चावल खाकर उसने 1 कप चाय बनाई और मग में लिए बरामदे में आ गई। अम्मा और नूरी जाने कब लौटती। उसने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। और अभी उसने दाल चुनकर चूल्हे पर चढ़ाई ही थी कि अम्मा वापिस आ गईं। कमजोर और लागर सी अम्मा अब तो बहुत मुश्किल चल ही सकती थी, वरना तो हादसात और हालात ने बुरी तरह चक्की में पीसा था। तुम क्यों करने लगी हो ये सब? मैं खुद कर लेती। अम्मा को कमरे में लिटाकर नूरी उसके पास आ गई। मैंने सोचा तुम शायद देर से लौटो, लाइन भी तो बेहद लंबी होती है। मगर कुछ बना? लहजे में उम्मीद भरे उसने पूछा तो मेहरून ने नफी में सर हिला दिया। नूरी भी एक लम्हे को चुप हो गई, फिर थोड़ी देर बाद माहौल का बोझलपन दूर करने की खातिर हंसकर कहने लगी, डॉक्टर के पास मरीज भी बड़े अजीब आते हैं। आज एक मरीजा साहिबा ने डॉक्टर साहब के इस्तफसार पर कि इन्हें क्या तकलीफ है, अपना बाजू डॉक्टर के आगे कर दिया और बड़े मजे से कहने लगी, आप बताएं ना, मुझे क्या तकलीफ है? लो भला, डॉक्टर कोई नजूमी तो नहीं? नूरी हंसने लगी और साथ ही वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। मैं तो नहीं कह रही, तौबा इस्तगफार, मैं अपनी बच्चियों के बारे में ऐसा कह सकती हूँ? मगर रशीदा, सारा मोहल्ला कह रहा है मेहरू उस किराएदार के हाथ से निकली थी। सब ने अपनी आंखों से देखा है। कैसी बेदर्द हो रही थी इस समय जमीला आपा। अम्मा हक्का बक्का सी बस उनका मुंह देखे जा रही थी। नूरी, एक गिलास पानी तो लाना, उनकी कमजोर सी आवाज आई। जमीला आपा आग लगाकर तमाशा देख रही थी। मेहरू घर पर नहीं है क्या? नूरी पानी लेकर आई तो पूछा। नहीं, वो तो बाहर गई है। नूरी अम्मा को सहारा देकर पानी पिलाने लगी। उनका सारा वजूद सर्द हो रहा था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो परेशान होकर उनके हाथ पांव दबाने लगी। जमीला आपा उठकर गईं तो अम्मा रोने लगी। अम्मा, क्या हो गया है? क्या कहा है जमीला आपा ने? अम्मा कुछ तो बताएं। नूरी के तो हाथ पांव फूल गए। तूने सुना? नूरी, लोग कह रहे हैं कि मेहरू अगली गली के किराएदार के घर से निकली थी और वो उससे मिलने हर रोज जाती है। पूछ जरा मेहरू से, अम्मा के एतबार का ये सिला दिया उसने? पूछ ना। मेहरू जो अभी अभी अंदर आई थी, माँ के अल्फाज ने उसे ब्लास्ट ही तो कर दिया।
कई लम्हे वो गंग खड़ी रह गई। हाथ से फाइल छूटकर नीचे जा गिरी थी। खटके की आवाज सुनकर नूरी ने मुड़ के उसकी सिमत देखा। उसकी हालत से उसने अंदाजा लगा लिया कि वो सब सुन चुकी है। वो उसकी तरफ बढ़ी। तू कब आई मेहरू? यहाँ क्यों खड़ी है? चलो कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। वो यूं ही खड़ी रही, फिर आगे बढ़कर अम्मा के करीब आई। किसने कहा है ये? आपसे कौन बकवास करता है, बताएं मुझे। वो जैसे अपने आप में नहीं रही थी। तू सिर्फ ये बता कि क्या करने गई थी उस किराएदार के यहाँ जो अकेला रहता है। अम्मा मैं तो। उसकी आवाज रुंध गई। अम्मा भी उस पर शक कर रही थी। क्या ये झूठ है कि तू वहां गई थी? अम्मा का लहजा यकबक सख्त हो गया। मैं गई थी अम्मा, मगर। बस दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे तुम लोगों के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और तुमने मुझे ये दिन दिखाया। मर क्यों ना गई मैं ये बात सुनने से पहले। नूरी, नूरी मुझे थोड़ा सा जहर दे दे, मैं लोगों की नजरों का सामना कैसे करूंगी। अम्मा मुंह पे कपड़ा डाले बैन करने लगी। साकित मेहरू को नूरी थाम कर अंदर ले गई, वरना वो गिरने ही वाली थी। जमीला आपा ने दीवार से सारी कार्रवाई देखी और मुस्कुराती हुई नीचे उतर गई। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम है। हम समझे थे सिर्फ किताबें पढ़ता है, मगर तूने तो जिंदगी पढ़ना शुरू कर दी। जिंदगी भी कैसी खूबसूरत। आबिद अपने लोफराना स्टाइल से उसके कंधे पे हाथ धरे कह रहा था। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो तुम? उसने सर उठाया। आबिद की आंखों में अजीब सी चमक थी। लो जी, इधर सारे शहर मोहल्ले में मुनादी पड़ी है और इनको खबर ही नहीं। वो ठट्ठा मार कर हंसा। मुनीब अहमद ने किताब बंद कर दी। किस किस्म की मुनादी की बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? अच्छा ये बताओ कैसी लगी तुम्हें? वो पूरी तरह कमीनगी पर उतरा हुआ था। कौन? मुनीब अहमद की हिस्सात पूरी तरह बेजार हो गई। वही जमीला आपा की गली वाली हसीना मेहरुन्निसा नूरे जहां। क्या? उसे तो जैसे झटका लगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैं कब कुछ कह रहा हूँ? अलबत्ता सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि मेहरुन्निसा तुम्हारे घर से निकली थी। तुम उसे गली तक छोड़ने भी गए थे, और। क्या बकवास है ये? मुनीब अहमद धाड़ा। क्यों फजूल में तोहमत लगा रहे हो? ओहो, तो मोहतरम घायल भी हो गए। तरफदारियां। हाँ जी, हुसन का रोब ही तो होता है। आबिद। मुनीब अहमद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो उसने आगे बढ़कर एक थप्पड़ झड़ दिया। कोई भी बात करने से पहले सोच लिया करो, जब तक तस्दीक ना कर लो सुनी सुनाई बात पर यकीन ना किया करो, यही बेहतर होता है। आबिद तो अभी तक गाल पर हाथ रखे सकते की कैफियत में खड़ा था। तुमने मुझे इस 2 टके की लड़की के लिए थप्पड़ मारा? उसकी आवाज घुटी हुई थी। तुमने बात ही इतनी घटिया की है। कोई घटिया बात नहीं की मैंने। और जो तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है तो जाओ उसे 2 बोल पढ़वा कर घर ले आओ। फिर कोई कुछ कहे तो बेशक उसकी गर्दन उतार देना, मगर इस तरह मार नहीं खाता मैं। वो खतरनाक तेवर लिए वहां से चला गया। मुनीब अहमद ने उसे गाली से नवाजा और खुद भी बाहर निकल आया। आबिद का रुख जमीला आपा की गली की तरफ था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर दरवाजा लॉक करने के बाद बेहद आहिस्तगी से आबिद का ताक्कुब करने लगा। तजस्सुस फितरी था। उसे झगड़ा करने के बाद जमीला आपा की गली की तरफ जाना क्या मायने रखता था। नूरी वजू करने के बाद मेहरू को पुकार रही थी कि आकर वजू कर ले, मगर मेहरू जाने किस सोच में खोई हुई थी। दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक बहुत जोरदार थी। नूरी जानमाज बिछाकर उस पर खड़ी हो चुकी थी। बरामदे में चारपाई पर लेटी अम्मा ने मेहरू को आवाज दी। क्या है अम्मा? वो कमरे से बरामद हुई। दस्तक में शिद्दत आ गई थी। उसने नागवारी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अम्मा की तरफ, और तेज कदमों से चलती दरवाजे की तरफ चली गई। जिस रोज से ये अफवाह उड़ी थी, जहनी तौर पर वो बेहद डिस्टर्ब हो गई थी। ऊपर से लोगों की मायनी खेज नजरें उसे ख्वाह की गुफ्त में मुब्तला कर देती। बड़ी बेजारी से उसने पूछा था, कौन? और जवाबन एक धार नुमा आवाज उसके कानों से टकराई थी। दरवाजा खोलो नेक परवीन। एक लम्हे को तो वो सहम सी गई। खौफजदा नजरों से पीछे मुड़कर नूरी सजदे की हालत में थी। अम्मा शायद ऊँग गई थी। दरवाजा अब के बड़ी बेदर्दी से पीटा गया था। उसने एकदम घबराकर कुंडी खोल दी। अगले ही लम्हे इसे 2 कदम पीछे हट जाना पड़ा। कहाँ है वो? गरजदार आवाज पर मेहरू ने सीने पे हाथ रखा और बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। नूरी वो से लिपट ही गई। नूरी ने नमाज तोड़ डाली और इधर देखा जहां आबिद मूंछों को ताव दे रहा था और बड़ी कड़ी नजरों से इन दोनों का जायजा ले रहा था। अंदर क्यों घुस आए हो? नूरी बहरहाल उसकी तरह डरपोक नहीं थी। मेरी मर्जी। हरदर्मी की क्या ही बात थी। अम्मा ये देखें, वो वहीं से चिल्लाई। बुला लो जिसको बुलाना है, ताकि सब अपनी नजरों से देख और कानों से सुन लें। वो दीदा दलेरी से बोला। शोर सुनकर जमीला आपा ने दीवार से झांका। अरे आबिद चंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है?
मुलाकात को आया था आपा, अब चलता हूँ। वो खबासत से हंसता बाहर चल दिया। मेहरू वहीं स्टोन से लिपटी रो रही थी। अम्मा, जिसकी आंख नूरी की चीख से खुली थी, हैरान हैरान सी सारा मंजर देख रही थी। ऐसे में नूरी ही रह गई थी जो अपने हौसले को मजबूत कर लेती। परवरदिगार, तू तो जानता है हम बेबस इंसान हैं। तूने हमको किस कदर मजबूर कर दिया है कि लोगों की ज्यादतियों पर हम लब भी नहीं खोल सकते। क्यों, आखिर क्यों? अम्मा की फगां लबों पर ही दम तोड़ गई थी। नूरी ने आगे बढ़कर बेसब्र होती मेहरू को थामा और अंदर कमरे में ले गई। उसे पानी पिलाया, फिर बिस्तर पर लिटा दिया। प्लीज मेहरू, बस। उसने अश्क पहुंचे आवाज भरा गई। अल्लाह अपने नेक बंदों के इम्तिहान लेता है, आजमाता है इन्हें, वही सब साबित कदम भी रखता है। अम्मा ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थीं और स्तून के पीछे खड़ी नूरी की लबरेज आंखें झलक उठीं। सुनिए मेहरू। मेहरू ने पीछे मुड़कर देखा। मुनीब अहमद उसे अपने दामन पर पड़े सारे छींटे खून के धब्बे महसूस होने लगे। उसकी रूह कुचली गई थी और महज इस शख्स की वजह से। एक पनाह ही तो ली थी और क्या जुर्म हुआ था, और इस पर इस शख्स ने सारे मोहल्ले में उसे बदनाम कर छोड़ा था। एक एक को बताया था कि वो उसके घर आई थी। कितने कमीने होते हैं ये लोग। उसके चेहरे पर अंदरूनी कुर्ब गुबार बनकर छा छा रहा था। वो मैं ये कह रहा था कि आप बेकसूर हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वो झुकी नजरों से कह रहा था। बेकसूर? कौन जानता है ये बात, जबकि आप खुद ही ये सब फैला चुके हैं। वो सख्ती से कहती वहां से आगे बढ़ गई। मुनीब अहमद को सख्त पछतावे ने घेर लिया। वो कुछ ना करने पर भी मुजरिम गर्दाना जा रहा था। अब अगर ये बात किसी ने फैला दी गलत रंग देकर, तो इसमें इसका क्या कसूर था? उसने फैसला किया कि वो किसी को नहीं तो वो इसके घर वालों को तो बता सकता है कि असल बात क्या है। हाँ, शाम को वो उनके घर जाएगा। उसने इरादा कर लिया। मेहरू मुंह सर लपेटे पड़ी थी जब नूरी ने अंदर आकर बताया कि कोई मुनीब अहमद अम्मा से मिलने आया है। और वो उस नाम के किसी शख्स से वाकिफ ना थी, इसलिए पड़ी रही। दिन भर की थकावट गनुदगी बनकर छा रही थी और वो नीम ख्वाबी की कैफियत में थी जब अचानक तेज शोर की आवाज से वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। या अल्लाह, खैर कोई नई क़यामत। वो यूं ही नंगे पांव बाहर दौड़ी। वही शख्स मुजरिमों की तरह सर झुकाए सहन के ऐन वस्त में खड़ा था। मोहल्ले की चंद औरतें और एक आध मर्द भी मौजूद थे। जमीला आपा दीवार पर महवे तमाशा थी। मायनी खेज मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। वो तो सूरत हाल ही ना समझ पाई। मुस्कुराहट क्या समझती, सरासीमा सी होकर नूरी को देखा। वो अम्मा के हाथ मल रही थी, साथ में रो भी रही थी। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आवाज आई। हम भी बेटियों वाले हैं, दिन दिहाड़े ऐसी दीदा दलेरी। मियाँ, तुम अपना बंदोबस्त कहीं और करो और इनसे हम खुद निपट लेंगे। मगर आप मेरी बात भी तो सुने। एहतजाजी आवाज मजबूत थी। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था। आप लोग खुदारा बात को समझने की कोशिश करें। मियाँ, हम सब समझते हैं, तुम्हें भी और इन लड़कियों की चलितर चालाकियों को भी। तौबा अस्तगफार। बकवास बंद करें। वो धाड़ा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए किसी पर तोहमत लगाते हुए। अगर ऐसा ही कोई शक है आपके जहन में तो मैं अभी इसी वक्त मेहरून निसा से निकाह कर रहा हूँ। धम धम समातों पर जैसे बोझ सा आन गिरा था और वो वहीं बैठती चली गई। नूरी ने हैरत से मुनीब अहमद को देखा था। जो जो कह रहा है सच है। हाँ नूरी, मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ। तुम मेहरू को तैयार कर दो। और अम्मा जी, आप यकीन करें, मेरा मेरा और मेहरू का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। ये सब इन लोगों की साजिश थी जिसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? वो सर झुकाए उनके कदमों में बैठा था और अम्मा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या कहें। अपनी पसंद नापसंद का इजहार करें या खामोश तमाशाई बनी सब कुछ चुपचाप सहती जाएं। मैं ठीक 1 घंटे बाद आऊंगा। उसने नूरी के सर पे हाथ रखा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अरे बड़े देखे हैं ऐसे बड़बोले, अब देखना पलट कर इधर का रुख भी नहीं करेगा। सब लोग बड़बड़ाते वापस चले गए। मगर नूरी बेटा, ये मुनीब अहमद करने क्या आया था? चस्के लेने से जमीला आपा बाज नहीं रह सकती थी। वही जो आपने देखा सुना। नूरी ने तड़क कर जवाब दिया। वो दीवार से नीचे उतर गई। नूरी मेहरू को होश में लाने की तरकीबें करने लगी। और ठीक 1 घंटे बाद मुनीब अहमद निकाह ख्वां और गवाहों के साथ मौजूद था। मेहरू तो खाली जहन लिए बेड पर बैठी थी, जबकि नूरी रोए चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई उसे तैयार कर रही थी।
और फिर चंद लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर किसी और की मलकियत बना दी गई। उसकी मलकियत जिसे उसने 2 बार देखा था, मगर उसके हवाले से मिलने वाले जख्म रूह तक को लर्जा देने के लिए काफ़ी थे। नूरी ने उसे गले लगाकर प्यार किया। अम्मा ने उसका सर शाने से लगाया, उसे खुश रहने की दुआ दी और मुनीब अहमद उसे रुखसत करा के उस छोटे से घर में ले आया जहाँ कभी वो पनाह लेने आई थी और वो मुस्तकिल उसकी पनाहगाह बन चुकी थी। चाय पियोगी? मुनीब अहमद ने पर्दा उठाकर अंदर झाँका और अकड़ी अकड़ी बैठी महरू ने सर नफ़ी में हिला दिया। इसके बावजूद कि उसका जी शिद्दत से चाय का तलबगार था। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में 2 मग रखे अंदर आया। मुझे पता था मुंह से कुछ नहीं कहेंगी आप। हाँ, मैं दरअसल निहायत फूहड़ हूँ, लाडला बेटा हूँ, अम्मा और पापा का 5 बहनों का इकलौता भाई। इसीलिए सलीका नाम की कोई चीज़ नहीं मुझ में इस घर में नहीं मिलेगी आपको, मगर मेरा ख्याल है आप ठीक कर लेंगी। चाय पिए? मग उसकी तरफ बढ़ाया जिसे उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट से थाम लिया। रात आपको ठीक से नींद तो आ गई? असल में काफ़ी दिन हुए यहाँ की सफाई ही नहीं की। मेरे एग्जाम्स नज़दीक है ना, इसीलिए वक्त की कमी होती है। खैर, चाय कैसी है? वो क्या बताती, मग तो यूं ही पड़ा था। वो मुंह उठाए बस उसे तके जा रही थी। मामा बहुत माना बहुत खूबसूरत हूँ, एक बार देखने से जी नहीं भरता, मगर जनाब अब तो आपके ही हैं। सारी उम्र पड़ी है देखने को। इस वक्त चाय ठंडी हो रही है और मुझे भी ज़रूरी काम से जाना है। अम्मा बाबा को इत्तला भी तो देनी है ना। वैसे हो सकता है तुम्हें वो पजीराई ना मिले जिसकी तवक्का तुम्हें हो। समझ रही है ना आप मेरी बात को? आप और तुम का मिक्सचर रवैया। वो जहनी तौर पर बेहद डिस्टर्ब थी, इसीलिए उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो चला गया। चाय यूं ही पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। उसने एक नज़र अपने लिबास पर डाली। आम सा सादा कॉटन का फेरोजी कुर्ता शलवार, कलाइयों में नूरी ने कांच की चूड़ियां पहना दी थीं, सुर्ख सब्ज और पीली चूड़ियां, कानों में अम्मा के चांदी के झुमके और गले में अम्मा का ही ग्लोबन मेकअप के नाम पर लिपस्टिक, जिसे नूरी ने गालों पर ब्लशन की तरह के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था, और आंखों में काजल की हल्की सी लकीर। ये था दुल्हन का रूप और हार सिंगार। कोई देखे तो कैसे माने, रात ही उसकी शादी हुई है। भला शादियां ऐसी होती हैं, न बैंड न बाजा, न सखियों ने ढोलक बजाई, न पिया के नाम पर छेड़ा, न मेहंदी रची, न तन पर उबटन महका। वो कैसी दुल्हन थी जिसे किसी ने ना देखा, हत्ता कि उसने भी, जो एक लम्हे में तमाम हकूक अपने नाम करवा लाया था। बेकदरी, बेबसी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे मेहरुन्निसा, ये क्या भाई? यूं क्यों? दुल्हा भाई ने कुछ कह दिया? नूरी की आवाज़ पर उसने पलकें उठाई। पीछे जमीला आपा भी थी। उसने फौरन आंखें पोंछ डाली। तुम कब आई? और अम्मा? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले, जब तुमने बाजू आंखों पर रख कर रोने का स्टार्ट लिया, और अम्मा उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए जमीला आपा को हमरा कर दिया। अरे मेहरुन्निसा, ये क्या भाई? यूं क्या? दुल्हा भाई ने कुछ कह दिया है? नूरी की आवाज़ पर उसने पलकें उठाई। पीछे जमीला आपा भी थीं। उसने फौरन आंखें पोंछ डाली। तुम कब आई? और अम्मा? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले, जब तुमने बाजू आंखों पर रख कर रोने का स्टार्ट लिया, और अम्मा उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए जमीला आपा को हमरा कर दिया ताकि हम तुम्हें ले जाएं। मगर ये दूल्हा भाई किधर हैं? बोलते बोलते उसे ख्याल आया, अभी बाहर निकले हैं। जमीला आपा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। जमीला आपा नाकदाना नजरों से उसका भरपूर जायजा ले रही थी। बड़े ही दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई। हाँ ना। धब से कुर्सी पर बैठी। मुनीब अहमद का रवैया तो ठीक रहा तुमसे? मेरा मतलब है, रात ऐसे लग रहा था जैसे वो फौरन 2 बोल कहेगा और तुम्हारा डोला वापिस। आपा कैसी बातें कर रही हैं? नूरी ने नागवारी से देखा। यकीन मानो, सायरा के अब्बा और मोहल्ले के मुअज्जिज लोगों ने दबाव डालकर उसे शादी पर मजबूर किया है। बड़ा शोर मचा रहा था कि मेरा तो निकाह हो चुका है और मैं मेहरुन्निसा से शादी नहीं करूंगा। मेहरुन्निसा का दिल मुट्ठी में आ गया, मगर सायरा के अब्बा ने भी ऐसा धमकाया कि उसे निकाह करते ही बनी। गजब खुदा का, हमारी बेटी को बदनाम करके रख दिया और खुद भागने के चक्कर में था। मगर आपा, शादी के लिए तो उन्होंने खुद कहा था। नूरी ने घूर कर आपा को देखा। हाँ ना, उस वक्त जान जो छुड़वानी थी। बाद में सायरा के अब्बा के पास आया और ये सब कहा, मगर वो कान से पकड़ कर ले आए। हम भी आखिर बेटियों वाले हैं, इज्जत है हमारी, और फिर बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। आज अगर उसे आराम से जाने देते तो बाकी लोग शेर हो जाते। मैं चाय बना कर लाऊं आपके लिए? मेहरू से वहां बैठना दोबर हो रहा था। अरे रहने दो, तुम क्यों बनाओगी? मुझे बताओ किचन किधर है, मैं खुद अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ चाय। जमीला आपा लहजे में मिठास भरकर बोली और फिर साथ ही उठ भी गई। वो मना करती रह गई।
नूरी, ये सब क्या हुआ है मेरे साथ? मैं इतनी कसूरवार तो ना थी। वो नूरी के गले लगकर सिसक उठी। वो क्या कह सकती थी? उसके हाथ को थपका। तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, इन्हें तो आदत है यूं ही एक को चार लगाने की। और देखो बार बार ये, और नानी इस दुनिया से रुखसत हुए तो, और देखो बार बार ये, बार बार ये, बार बार ये, बार बार ये है। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक पेज शायद मिसिंग है, तो आगे से जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है वहीं से कर लेते हैं। और नानी इस दुनिया से रुखसत हुई तो जिंदगी उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। अम्मा ने मशीन चला चला कर घर के खर्च को संभाला। सिलाई अच्छी और सफाई से करती थी। वो एक बुटीक पर भी अपना ऑर्डर देने लगे तो सारी खराबी वहीं से शुरू हुई। जाहिर था बुटीक वाले अपना ऑर्डर लेने आते थे और वो मर्द ही होते थे। मोहल्ले वालों को एतराज हुआ और वो भी दबी जबानों में ऊंची आवाज निकालते तो शायद हक सच सामने आ ही जाता। यूं मशहूर ये हो गया कि यह घराना अच्छा नहीं है, मर्दों का आना जाना है और इसी किस्म की दूसरी बातें। अम्मा में बर्दाश्त बहुत ज्यादा थी। वो अव्वल तो किसी से इतना मिलती जुलती ही ना थी, और जो कभी उनके कान में ऐसी वैसी कोई बात पड़ ही जाती तो वो नजरअंदाज कर जाती। गुजरते वक्त ने जहां उनकी सेहत को मुतासिर किया, वहीं मेहरू और नूरी की सूरत में वो बोझ उनके सर पर तैयार खड़े थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो वो उनको इज्जत से रुखसत कर दें, मगर शायद सबसे ज्यादा आजमाइशें भी गरीबों के लिए ही होती हैं। जमीला आपा से उनकी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी और वो अक्सर और बेशतर उनकी मदद करती रहती थीं। अब भी अम्मा के कहने पर एक रिश्ता लाई। जाने कौन लोग थे, नूरी ने तो देखते ही कह दिया, छिछोरे। इन लोगों ने सुन लिया और काफ़ी से ज़्यादा बुरा मानकर चले गए। बाद में अम्मा और जमीला आपा ने खूब झाड़ा, मगर वो मुतमईन थी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। और वो दिन भी क़यामत का था जब अम्मा पर फालिज का जबरदस्त अटैक हुआ। आधी रात का वक्त। नूरी और मेहरू बेयारो मददगार। मर्द के होने से कितना सहारा रहता है, और अगर जो इनका कोई भाई होता तो इस आड़े वक्त में उनके काम तो आता। कम से कम किसी डॉक्टर को ही बुला लाता। उस रोज मेहरू को अपने बाप से शदीद तरीन नफरत महसूस हुई, जिसने इन्हें यूं बेआसरा छोड़ा था। रोते रोते सहर हो गई। मेहरू भागकर जमीला आपा को बुला लाई। वो अपने शोहर की मदद से अम्मा को हॉस्पिटल ले गई, जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया, और यूं जो थोड़ा बहुत जमा था अम्मा के इलाज पर उठ गया। 8वें दिन अम्मा घर वापिस आई तो घर में फूटी कोड़ी तक ना थी, जिससे वो कुछ खरीद कर खाने का बंदोबस्त कर लेती। बेबसी और मुफलिसी पर उसे रोना आ गया। वो और नूरी कितनी देर गले लगकर रोती रहीं। फिर उसने फैसला कर लिया, मैं कॉलेज छोड़कर कहीं नौकरी कर लेती हूँ। मगर तुम्हारा ख्वाब? नूरी ने यूं ही पूछा, वरना वो जानती थी अब ऐसा करना ही होगा। घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती होगी, और अम्मा इस काबिल नहीं रही कि मशीन चला सकें। अगरचा नूरी और मेहरू की देखभाल से वो बहुत बेहतर हो गई थीं, मगर फिर भी बगैर सहारे के चल फिर नहीं सकती थीं। यूं उसने अगले रोज ही जगह जगह जॉब की तलाश में ख्वार होना शुरू कर दिया। बीए फाइनल में थी। चंद दिन बाद इम्तिहान होने वाले थे, मगर जिंदगी ने जो इम्तिहान उनके लिए लिख दिया था वो ज्यादा अहम था। और जो उसे खबर होती कि पनाह लेना ही उसके लिए इतनी क़यामत खेजियों का बाइस बन जाएगा, तो वो कहीं और छुप जाती। गली में ही भागती रहती। बस स्टॉप से लेकर गली तक आने वाले तमाम रास्ते में इन लड़कों ने उसका पीछा किया था, और वो खौफजदा होकर पनाह लेने पर मजबूर हो गई थी। मगर तकदीर उसके लिए कुछ और सोचे बैठी थी, और जो कुछ लोहे किस्मत पर लिखा गया वो तो हो चुका था। वो कैसे और किधर को भागती? कोई रास्ता ना उस रोज आया और ना ही अब बचा था। पर वक्त उसे अपनाने का फैसला करके मुनीब अहमद ने उस वक्त तो लोगों की जुबानें बंद कर दी थीं, मगर हकीकतन वो लोगों की जुबान की जद में आई ही कब थी। अपना नाम देकर वो जाने कहाँ गायब हो गया था, जैसे बस यही जिम्मेदारी थी। उसके बाद तो ना उसने पलटकर कोई खबर ली थी और ना ही कोई तसल्ली देने वाले चंद अल्फाज भेजे थे। वो भेजता भी क्यों? थी ही कौन वो उसकी? मुफ्त की एक मुसीबत जो ख्वामख्वाह गले पड़ गई थी, और ज्यादा एहसास जमीला आपा ही दिलाया करती। दीवार पर आन खड़ी होती, चेहरे पर जमाने भर की हमदर्दी समेट कर वो मेहरू को देखती। तबाह हो गई जिंदगी, इससे तो अच्छा था यूं ही रहने देता, किसी और का आसरा तो रहता। मेहरू सर झुकाए सब सुनती, फिर अम्मा के बाजू पर जैतून का तेल मलने लगती। कभी आ जाती तो टटोलती नजरों से देखती। उस रात उसने तुमसे कुछ कहा तो होगा, क्या बताया नहीं कि उसकी एक मनकूहा और भी है? नूरी गुस्से से चीजें उठक पटक करती रहती। उसे जमीला आपा सख्त बुरी लगती थी, बल्कि अक्सर तो वो इन्हें जमालो आपा ही कहती। सुनो नूरी, गाजर छीलते हुए उसने नूरी को पुकारा। वो तसले में आटा डाल रही थी, रुक कर पूछने लगी, क्या हुआ है? उस रोज जब मुनीब अहमद आया था तो क्या बात हुई थी? जहन में खटकती बात बिलाखिर होंठों पर आ ही गई।
कुछ नहीं, वो बेचारे तो माजरत करने आए थे और अम्मा को यकीन दिलाने कि तुम बेकसूर हो, और ये कि तुम उनके घर क्या करने गई थी। मगर पता नहीं कैसे लोगों को खबर हो गई। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि जमालो आपा ने ही शोशा छोड़ा होगा। इसके शोहर दो चार आदमियों के हमरा दरवाजे पर आ गए और लगे शोर मचाने कि मुनीब अहमद को बाहर निकालो, इस मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा, हम भी बहू बेटियों वाले हैं। लाख उन्होंने कहने की कोशिश की, सफाई देना चाहिए, मगर कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। बिल आखिर वो फैसला हुआ जो शायद आम हालात में कभी ना होता। पता नहीं वो तुम्हें कैसे लगे, मगर मेहरू, हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता ना था। आंसू टिप टिप गिरते रहे और वो एक ही गाजर को कितनी देर छीलती रही। एक कप गर्मा गर्म चाय बना देना नूरी, बहुत सर्दी है, स्टेशन से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। बाहर से आती आवाज उसे पूरी तरह बेदार कर गई। तमाम रात बारिश बरसी बरसी थी और सुबह इतनी धुंध थी के वक्त का एहसास ही न हो रहा था, और वो कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि नूरी तड़के उठकर नमाज की अदायगी के बाद अपने रोज के मामूलात में मसरूफ हो गई थी। और अब ये आवाज़ मुनीब अहमद, उसने लहाफ परे फेंका और खिड़की में आ खड़ी हुई। धुंध अभी तक गहरी थी और इसी धुंध में मैरून जर्सी और शायद ब्लू पैंट में वो सामने खड़ा दोनों हथेलियों के सांस की हिद्दत से गर्म करता किचन की सिम देख रहा था। उसे एकदम ही इस समय बहुत अच्छा लगा। एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर ठहर गई। ये शख्स उसका है, तमाम तर। कैसा खुशकुन एहसास था। वो कितनी देर वहां खड़ी उसे देखती रही। नूरी चाय ले आई थी। वो अब मुस्कुराते हुए उसे कप थमाकर पूछ रही थी कि वो नाश्ते में क्या लेगा। वो धीरे धीरे नफी में सर हिला रहा था। उसने खिड़की के पट से सर टिकाकर आंखें मोड़ लीं। जिंदगी भी कैसे कैसे अजीब वाकयात रोनुमा हो जाते हैं कि एक लम्हे को तो बंदा सोचता ही रह जाता है, ये क्या हुआ, क्यों और कैसे। आप आज ही चलेंगी मेरे साथ या फिर कल या परसों? आवाज इतने करीब से आई थी कि उसने डर कर आंखें खोली। वो उसके बेहद करीब खड़ा था। आज ही ले जाएं इसे, यहाँ इस पर जिंदगी तंग हुई पड़ी है, नूरी ने अंदर आते हुए कहा। वो नाश्ता बनाकर ले आई थी। ट्रे तपाई पर रख के उसने मेहरू की तरफ देखा। वो सर झुकाकर खामोश खड़ी थी। मेहरू, तुम मुनीब भाई के साथ नाश्ता कर लो, अम्मा जाग गई होंगी, मैं उनका मुंह धुला दूं। वो वापस चली गई। क्या डर लग रहा है? वो शौक नजरों से उसे देख रहा था। वो सटपटाकर इधर उधर देखने लगी। मैं मुंह धोकर आती हूँ। सोचा तो यही कहा। रहने दें, ऐसे ही चलेगा। उसने बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लिया। वो उसे नाश्ता सर्व करना पड़ा। पूछा नहीं, आपने इतने दिन कहाँ रहा? आप खुद ही बता दें। जमीला आपा की सारी बातें एकदम ही याद आ गईं। वो कई सानिया उसके चेहरे पर नजरें जमाए देखता रहा, फिर खामोशी से सर झुकाकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो अम्मा से मिला। नूरी ने बिना कहे उसका बैग तैयार कर दिया था। रवानगी कब होगी? उसने मेहरू से पूछा और मुनीब अहमद की तरफ देखने लगी। अभी इसी वक्त, मेहरू तैयार हो जाए तो। और नूरी उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। जबरदस्ती मुंह हाथ धुलाकर कपड़े बदलवाए और फिर हल्का सा मेकअप भी कर दिया। पता नहीं क्यों मेहरू, तुम मुझे दुल्हन नहीं लग रही। वो शरारत से मुस्कुराई। हाँ तो दुल्हन ऐसी कब होती है? टीका, झूमर, जेवरात और हसीन मलबूसात से लदी लड़की दुल्हन लगती है माय डियर। और फिर बाजे गाजे के साथ बारात आए, लोगों को पता चले, तभी कोई तस्लीम करता है ना। इस तरह ब्याही जाने वाली लड़कियों को लोग तो क्या तस्लीम करेंगे, ब्याह करके ले जाने वाला ही वो मुकाम नहीं देता। वो जहर खुंद हुई। मुनीब अहमद का ये रवैया भुलाने वाला नहीं था। खैर, मुनीब भाई ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, खुली तबीयत के मालिक। देखो, पहली बार हमारे घर आए और महसूस ही नहीं हुआ कैसी बेतकल्लुफी से उन्होंने चाय मांग ली। बहरहाल, तुम अपनी इस कनूतियत से छुटकारा पा लोगी और इनकी बागो बहार तबीयत की वजह से। और मुझे यकीन है कि आइंदा जब तुम यहाँ आओगी तो एक खुश मिजाज लड़की होगी। नूरी कुछ ज्यादा ही पुरयकीन थी। हालांकि उसे जाने क्यों यही ख्याल बार बार आ रहा था कि मुनीब अहमद के घर वाले उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, और जब हर तरफ से रद्द किया जा रहा हो तो खुश मिजाजी खाक आएगी। जैसे ही उसने मुनीब अहमद के हमरा घर से बाहर कदम रखा, गली की खिड़कियां खुल गईं। जमीला आपा तो बकायदा सड़क पर निकल आईं। जा रही हो? शुक्र है खुदा का। अरे मैं तो दिन रात दुआ मांगा करती थी कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए। इतनी नेक बच्चियां हैं, लोगों ने कैसा ख्वार कर दिया। सच कहते हैं, द्रांति के एक तरफ और दुनिया के दो तरफ दंदाने होते हैं, बराबर काटती है ये दुनिया। हस्बे मामूल उनकी चर्ब जुबानी जारी थी। मुनीब अहमद उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। वो जमीला आपस से कोई बात नहीं करना चाह रही थी और मुनीब अहमद ने भांप लिया था, फिर भी उसने बात नहीं करने दी। सुनो, ये जमीला आपा कुछ अजीब सी खातून नहीं है? वो जानता था मेहरू का मूड खराब हो गया है, इसीलिए बात करना जरूरी समझा। जी नहीं, हमें तो कभी नहीं लगी। बेहद मुखलिस और ख्याल रखने वाली हैं। अम्मा से बचपन की दोस्ती है। बचपन की? क्या दोनों में से कोई भी ससुराल नहीं गई? उसने चौंक कर पूछा।
नहीं गई थी अम्मा। जमीला आपा अपने चचा के यहाँ ब्याही गईं। एक ही घर में रहते थे दोनों भाई, इसीलिए ब्याह कर कहीं और नहीं गईं। और अम्मा, उसके लबों पर तलक मुस्कुराहट फैल गई। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर हर माँ बाप अपनी औलाद बल्कि बेटियों को यही तलकीन करके रुखसत क्यों करते हैं कि मर जाओ। बोलते बोलते वो खामोश हो गई। मुनीब अहमद बड़े गौर से उसे बोलता देख रहा था। वो एकदम ही कॉन्शियस हो गई थी। हाँ क्या, मर जाओ? उसने पूछा। कुछ नहीं, वो मुंह फेर कर बाहर देखने लगी। अच्छा सुनो मेरी एक बात गौर से और गैर जानिबदार होकर फैसला देना। मैंने घर वालों की इजाजत के बगैर शादी की है, तुम जानती हो। मैं नहीं जानता तुम्हें देखकर उनका रद्द-ए-अमल कैसा होगा। हो सकता है उनका रवैया बदले तो मैं भी बदल जाऊं, इसीलिए कि बहरहाल मुझे अपने माँ बाप और बहनों का मान नहीं तोड़ना। उनकी बहुत सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता थी और मैंने अभी इन्हें तुम्हारे मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। अब जाहिर है तुम्हें मेरे साथ देखकर वो जान लेंगे। तमाम सूरत हाल को तुम्हें खुद ही फेस करना होगा। अगर मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं तो सॉरी, मगर तुम्हें बहुत ज्यादा हौसले और हिम्मत का मुजाहिरा करना होगा। और मेहरू को न जाने क्या हुआ, जोर से हंस दी। गोया उसे कोई छत मुयस्सर नहीं हुई और वो वैसी की वैसी है। वक्ती तौर पर, बल्कि जमीला आपा के शोहर के दबाव से मजबूर होकर वो उसे ब्याह तो लाया, मगर अब साथ निभाने से माजूर है। उफरी मेहरू, क्या तकदीर है तेरी। उसने सर को झटका और बगौर मुनीब अहमद को देखने लगी। एकदम ही उसे लगा जैसे वो बहुत बहादुर हो गई हो। खुद तरसी का एहसास खत्म हुआ और उसने खुद को बेहद मजबूत पाया। तो मुनीब अहमद, उसने मुनीब अहमद की आंखों में आंखें डालकर कहना शुरू किया। वो हैरान हैरान सा उसकी कैफियत देख रहा था। उसके जहन में था कि जैसे वो ये बात सुनेगी। वो हैरान हैरान सा उसे देख रहा था। उसके जहन में था कि जैसे ही वो ये बात सुनेगी रोना शुरू कर देगी। मगर वो तो उसकी बात सुनकर जोर से हंस दी थी और अब बड़े एतमाद से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। तुम लोग क्यों औरत को इतना बेबस और मजबूर कर देते हो कि वो सिवाय मरने के और कुछ सोच ही ना सके। आप क्या समझते हैं कि मैं बदकिरदार लड़की हूँ, हर मर्द को भूखी नजरों से देखती हूँ और आपको भी फंसाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा रचाया? मुझे नहीं जरूरत किसी भी सहारे की। आप आजाद हैं मेरी तरफ से। और हाँ, ये मजबूरियों को राना किसी और के सामने मत रोइएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? उसका अंदाज तंजिया हो गया था। क्या मतलब? मैं अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा हूँ आपके सामने? वो खासा जज्बस होकर बोला। तवक्का जो नहीं थी कि वो यूं पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी। पता नहीं, उसने सर झुका लिया। क्या कहती, ये जो अभी दास्तान अमीर हमजा सुनाई है, क्या मजबूरियों की तवील फहरिस्त नहीं? साफ दामन नहीं छुड़ा रहा था वो? यानी उसका फर्ज सिर्फ इतना ही बनता था कि उसको अपने घर वालों के सामने पेश कर दे। बाद में वो इस पर कौन सी दफा लगाएं और कौन सा तरीका है मौत तजवीज़ करें, इससे ऐसे कोई गर्ज नहीं होगी। अच्छा आदमी था। बाकी तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। जबकि मुनीब अहमद ने बड़ी कोशिश की थी बात करने की, वो लाताल्लुक बनी बैठी रही। और वो नूरी कह रही थी कि मुनीब अहमद उसे खुशमिजाज बना देगा। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी रही सही खुशमिजाजी भी उड़न छू हो जाएगी। पता नहीं मुनीब अहमद के घर वाले उसे अंदर घुसने भी देंगे या फिर दरवाजे से ही चलता कर देंगे। हाँ, जब हमरा लाने वाला ही दस्तबरदार हो रहा है तो कोई और क्यों बर्दाश्त करेगा? सारी बातों के बावजूद एक लम्हे को भी उसके दिल में नहीं आया कि वो मुनीब अहमद से कहती कि अगर ऐसा ही करना था तो मुझे वहीं पड़े रहने देते। कम से कम मैं अपने घर में सुकून से रह तो लेती। फिर एकदम उसे ख्याल आया, सुकून से, और वो हंस दी। मुनीब अहमद ने बेहद हैरत से उसे देखा। क्या वो पागल है जो इस दर्जा स्ट्रेस कंडीशन में भी हंस रही है? मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर सख्ती के साथ नो लिफ्ट का बोर्ड दोबारा चिपका हो चुका था। मुनीब अहमद ने भी खिड़की से बाहर भागते नजारों पर नजर जमा दी। खुले दरवाजे में कदम रखते हुए एक पल को वो ठटकी, फिर खुद को हौसला देकर मुनीब अहमद के पीछे चल पड़ी। हाँ, जब सारी सूरत हाल उसे खुद ही समेटनी थी तो वो मुनीब अहमद का सहारा क्यों ढूंढती? सामने कमरे से एक बड़ी प्यारी सी लड़की निकली और मुनीब अहमद को देखते ही उसकी तरफ भागी। भाईजान, आप आ गए। फौजी, रिदा देखो भैया आ गए। वो चिल्लाती भी जा रही थी। आते के साथ ही दो भाई से चिमट गईं, साथ ही दो और लड़कियां भी आ गईं। तीनों में से किसी ने भी पीछे खड़ी मेहरू पर तवज्जो नहीं दी। वो चुपचाप खड़ी उनकी वारफतियां देखती रही। अम्मी बाबा कैसे हैं? उनको साथ लिपटाए वो आगे बढ़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई। अचानक ही रिदा की नजर उस पर पड़ी। फौजी, वो कौन है? और तभी मुनीब अहमद को उसका ख्याल आया। वो रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो उलझी उलझी से उनकी तरफ देख रही थी। वो पल में कमजोर हो रही थी। हालात कोई भी पलटा खा सकते थे। उसे अभी यहाँ से निकाला भी जा सकता था। और फिर इस अनजान शहर में वो जाएगी कहाँ? और इस वक्त उसने दूर गुरूब होते सूरज पर एक नजर डाली। रिदा उसके करीब आ चुकी थी और अब इर्द गिर्द घूम कर बगौर उसे देख रही थी। भैया बताएं ना, ये कौन है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? वो बेताबी से गोया हुई। मुनीब अहमद के लबों पर मुस्कुराहट फैली। लोग तो यही कहते हैं।
रिदा उसकी बात को नहीं समझी और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, आप भाई के साथ आई हैं और यहाँ खड़ी हैं, अंदर चले ना। और वो रिदा की तकलीद में आगे चलने लगी। फौजी और दूसरी लड़की ने अलबत्ता कोई नोटिस नहीं लिया था। अम्मा देखे ना, भाई आए हैं और साथ उनकी दोस्त भी। रिदा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। दोस्त? अम्मा का चेहरा बेटे की आमद की खबर पाकर खिला और फिर उसे देखकर मुतजब्जब सा हो गया। सलाम करो अपनी सासू जी को, मुनीब अहमद ने सरगोशी से अंदाज में कहा। और सरगोशी इतनी बुलंद जरूर थी कि अम्मा ने सुन ली और उनका प्यार देने के लिए हाथ उठा ही रह गया। वो कन्नखियों से मुनीब अहमद का जायजा ले रही थी, जो अब यकसर लाताल्लुकी से खड़ा था। क्या कह रहे हो मुनीब अहमद? अम्मा की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आई। हाँ, अभी वो उसे निकल जाने का हुक्म सुना देंगी। उसका दिल लरजने लगा। वो क्या करे? मुनीब अहमद की हिदायत पर भी अमल ना कर सकी थी। अम्मा, ये मेहरू है, आपकी बहू रिदा, फौजी मारिया, ये आपकी भाभी हैं। इतना कमजोर लहजा? भाभी? रिदा की चीख सबसे बुलंद थी। मगर भाभी तो फिजा आपी हैं। वो 10 साला मासूम बच्ची उलझ सी गई। नहीं, तुम्हारी भाभी ये हैं, मेहरू भाभी। चलो इन्हें कमरे में ले चलो। उसने धीरे से तीनों का सर थपथपाया। रिदा और फौजी उसका हाथ थाम कर जाने लगी। अम्मा, भाभी को कौन से कमरे में ले जाऊं? भैया तो फिजा आपी के सिवा किसी को कमरे में नहीं घुसने देते। फौजिया ने मासूमियत से कहा। तो मुनीब अहमद का जी चाहा सर पीट ले। सारी गुलफशानियां इसी ने तो करना होती हैं। मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी रिदा। उसने रिदा का हाथ थाम लिया। रिदा खुशी खुशी उसे लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ये सब क्या है मोबी? अम्मा थकी थकी सी आवाज में गोया हुई। कितनी तवक्कुआत वाबस्ता थी इनको मुनीब अहमद से। वह इनका इकलौता लाडला बेटा था। कैसे कैसे ख्वाब देख रखे थे उन्होंने इसकी शादी के लिए। फिजा उनकी भांजी कितनी प्यारी थी। शुरू दिन से उन्होंने फिजा को मुनीब अहमद के दुल्हन के रूप में देखा था और मुनीब अहमद को भी उससे आगाह कर दिया था। वो खुद फिजा को बेहद पसंद करता था। डिसेंट सी फिजा हमीद सबको ही पसंद थी। बेहद ज़हीन, लाइक, समझदार, सलीकाशार, फर्माबरदार। कौन सी खूबी थी जो फिजा हमीद में नहीं थी? और अभी पिछले साल ही तो बड़े धूम धड़के से उन्होंने दोनों की मंगनी की थी। और अब मुनीब अहमद ये क्या कराया था? उनकी सवालिया नजरें मुनीब अहमद के चेहरे पर मरकूज थी और वो मुनासिब अल्फाज की तलाश में था कि कैसे माँ को बताए, यूं कि वो लड़की भी बेआसरा ना हो और माँ का दिल भी ना दुखे। हालांकि बेखबरी में वो इन्हें बहुत बड़ा दुख दे चुका था। अम्मा, क्या आप मुझे गलत समझ रही हैं? वो उनके बेहद करीब बैठा और उनके हाथ थाम लिए। मैं वहां पढ़ने ही गया था अम्मा, ये सब तो अचानक ही हो गया। वो धीरे धीरे बताने लगा। हालात बहुत खराब हो गए थे। मेरी वजह से एक लड़की बल्कि पूरा घर बदनाम हो रहा था। अगर मैं इस कड़े वक्त में इन लोगों को यूं बेसहारा छोड़ देता तो। अम्मा, आपने ऐसी तरबियत तो नहीं दी हमें। सर उनकी गोद में रख दिया। मगर बेटा, फिजा का क्या होगा? उनके नरम हाथ बालों पर आकर ठहर गए और मुनीब अहमद भी एक लम्हे को सन्नाटे में रह गया। ये तो उसने सोचा ही ना था। फिजा का क्या होगा? फिजा, फिजा, फिजा। हर तरफ एक पुकार सी मच गई। उसने बेचैनी से पहलू बदला, फिर उठकर लंबे लंबे ढक भरता कमरे की तरफ चला गया। अम्मा खुद गहरी सोच में गलता थी। ले भाभी, मैं आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ। मारिया ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। मारिया रिदा और फौजिया से बड़ी थी, इसलिए थोड़ी सी समझदार भी थी। मेहरू को वाकई जबरदस्त भूख लगी थी। उसने इनकार करने का तकल्लुफ नहीं किया और फौरन उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। हाथ मुंह धोकर वापस आई तो मारिया खाना प्लेटों में निकाल रही थी। अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। भैया बहुत चटोरे हैं ना, जब भी आते हैं नित नई फरमाइशों के साथ। और अम्मी का तो बस नहीं चलता कि दुनिया की सारी नेमतें उनके आगे ढेर कर दें। फिजा आपी ने कई कुकिंग कोर्सेज कर रखे हैं। भैया से बहुत मोहब्बत करती हैं ना, हर वो काम करती हैं जो भैया को पसंद हो। खुद भी इतनी प्यारी हैं कि जो देखे देखता रह जाए। अब आप तो यहीं रहेंगी ना? मैं मिलवाऊंगी आपको फिजा आपी से, बल्कि वो खुद ही आ जाएंगी सुबह। मेहरू का खाना पड़े पड़े ठंडा हो गया था। मेहरू का खाना पड़े पड़े ठंडा हो गया था और वो एक टिक फौजिया को देखे जा रही थी। भूख तो उड़ ही चुकी थी। उसने प्लेट परे खिसका दी। मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा खा लें भाभी। तीनों ने इसरार किया। नहीं, मुझे नींद आ रही है। वो उठकर बेड पर चली गई। रिदा, ये तुम्हारा बिस्तर है? उसने पूछा। जी भाभी, उसने कहा तो वो लेट गई। तमाम बदन दुख रहा था, यूं जैसे किसी ने बेतहाशा पीट डाला हो। और आंसू आंखों में जमा होने लगे तो उसने पलकें मूंद लीं। कैसा तकलीफ दे एहसास था कि उसका शोहर उसका नहीं था। रिदा, बहू सो गई क्या? अम्मा ने दरवाजे से ही पूछा। उसने पलकें और जोर से मींच लीं। अगर जाग रही हो तो उसे भाई के कमरे में छोड़ आओ। चीजें अपनी जगह पर ही अच्छी लगती हैं, ख्वाह वो मर्जी के बगैर घर में आई हों। फरमान जारी हुआ। बगैर मर्जी के। दिल में एक अन्नी चुभी और वह मुश्किल पलकों की बाढ़ पर रोके गए आंसू तमाम हदें फलांग गए। भाभी, आप जाग रही हैं? रिदा ने झंझोड़ा तो वो सुन सी बाजू पर आंखों पर तो वो सुन सी बाजू आंखों पर धड़ी पड़ी रही। रिदा ने दोबारा आवाजें दी। फिर फौजी ने टोक दिया।
भाभी सो गई हैं, तंग मत करो। रिता लाइट ऑफ करके उसके साथ लेट गई। मेहरू ने बाजू आंखों से हटाया और लब बेंचे, आंसुओं को बह जाने दिया। उसके नसीब में अभी मजीद भागना लिखा था। तकदीर का शहसवार हाथ में चाबुक लिए उसके पीछे था और उसे भागते रहना था। इसीलिए मुमकिन नहीं था कि वो थक के आराम करे, बस भागना था। कब तक वो नहीं जानती थी। सफर खत्म होना था या उसने, एक सवालिया निशान, और जवाब कहीं नहीं था। वो अभी बात लेकर निकला था, गीले बालों को तौलिए से रगड़ता। वो रिदा और मारिया से छेड़छाड़ भी कर रहा था और सामने कपड़े प्रेस करती मेहरू को भी देख रहा था। रोई रोई आंखें, चेहरे पे शादाबी का नामो निशान न था। तासुफ ने उसके दिल में घर कर लिया। वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। सुनो, ये तुम्हारी भाभी ने मुंह नहीं धोया आज? अचानक ही वो पूछ बैठा। धोया था, रिदा ने फौरन जवाब दिया। अच्छा, क्या आंसुओं से? चलते चलते करीब आ गया। मेहरू ने बस एक जरा पल को सर उठाकर उसकी सिमत देखा। मुस्कुराता हुआ शरारती नजरों से उसे देख रहा था। क्या कर रही हो? जान बूझकर अनजान बना, हालांकि वो इसी के कपड़े थे। कपड़े प्रेस कर रही हूँ आपके, धीरे से जवाब दिया। क्या धोबन रही हो कभी? वो पास ही पड़ी कुर्सी पर मजे से टिक गया। जी? बेतुके सवाल पर उसने सर उठाया। वो संजीदा था। मोहतरमा, ये कपड़े आज से पहले, यानी आपके कदम रंजा फरमाने से पहले भी इस्त्री हुआ करते थे, और खूब हुआ करते थे। ख्वाम खा की जहमत उठाने से फायदा। मेहरू ने स्विच ऑफ किया और कपड़े यूं ही स्टैंड पर छोड़कर उठ गई। रुकिए, उसने बाजू से पकड़ा। खफा हो गई हो? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। फोजिया, कितनी बुरी बात है, तुमने आते ही इन्हें काम पर लगा दिया। वो वहीं बैठा चिल्लाया, बाजू अभी तक ग्रिप में था। वो फंसी खड़ी थी। नाश्ता तैयार है भैया, अम्मा पूछ रही हैं, यहीं करेंगे या उधर? फौजिया ने इधर आते हुए पूछा। भाई, अपनी मिसिस के साथ करेंगे हम नाश्ता, बल्कि तुम सब लोग भी यहीं आ जाओ। वो कुछ ज्यादा ही तरंग में था। मेहरू हैरान हो रही थी उसके बदलते रवैयों पर। जेरे लब गुनगुनाते हुए वो उनके चेहरे पे नजरें जमाए बैठा था। बाजू तो छोड़ें, उसने छुड़ाने के लिए मुजाहमत की। मुनीब अहमद ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर गीला तौलिया उसके मुंह पर डालकर खुद ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। ये शख्स उसके लिए मुअम्मा था। जिंदगी तुम्हारे लिए कभी सहल नहीं होगी मेहरुन्निसा। उसने एक गहरी सांस अंदर उतारी और कमरे की तरफ चली गई। मुनीब अहमद जाने की इस बात पर इतना खुश था कि गुनगुनाहटें सारे घर में गूंज रही थीं। मारिया, रिदा और फौजी तो स्कूल चली गई थीं। वो अम्मा के पास ही चुपचाप सर झुकाए बैठी हथेलियों को घूर रही थी। मुनीब अहमद अंदर कमरे में मुसलसल गुनगुनाए जा रहा था। नीरा पागल है ये लड़का। अम्मा कमरे की तरफ देखकर हंस दी। अस्सलाम वालेकुम। कितनी मुधर मुतरन्नम आवाज थी। मेहरू ने फौरन ही आवाज की सिम देखा। कैसी हैं खाला अम्मा? वो अम्मा के गले में बाहें डाले बड़े लाड से पूछ रही थी। कैसे कटे रात दिन, कैसे रहे मेरे बिन? मुनीब अहमद की आवाज फिर उभरी और वो लड़की सर झटक कर हंस दी। फिजा, मेहरू ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया था, जबकि अम्मा तो हनूज उसकी अचानक आमद पर हवास बागता थी। और मजीद ये कि मेहरू सामने मौजूद थी। बड़े मूड में है, कब से आया हुआ है? इसकी नजर अभी तक मेहरू पर नहीं पड़ी थी। रात, अम्मा मुख्तसरन कहकर चुप हो गई। बड़ा मिजाज हो गया है, रात से आया है और फोन तक नहीं खड़काया। मैं निमटती हूँ इससे। अम्मा ये कौन? उसके बढ़ते कदम जैसे रुक गए। ये इन्हें कोई जवाब ही ना सूझा तो वो तो नाम भी नहीं जानती थी कि सिर्फ नाम ले देती। मेरा नाम मेहरुन्निसा है और मैं। उसने रुककर अम्मा की तरफ देखा। बड़ी बेचारगी थी उनके चेहरे पे, जैसे वो ये बात छुपाना चाहती हूँ और उससे कह रही हूँ कि मत बताना मेहरुन्निसा। मेहमान हूँ यहाँ चंद रोज के लिए। उसने बात मुकम्मल की और अम्मा के चेहरे पर जैसे जिंदगी की रमक आ गई। ये तुम्हारे खालू की दूर पार की रिश्तेदार हैं, चंद दिनों के लिए आई हैं। अम्मा खुद ही वजाहतें देने लगी, जबकि फिजा मुकम्मल तौर पर मेहरू की तरफ मुतवज्जा थी। दोस्ती चलेगी? वो हाथ बढ़ाए पूछ रही थी। मेहरू ने उसका हाथ थाम लिया। गुड, बाकी तारुफ बाद में, पहले मैं उस गधे के कान खींचाऊं, बहुत बिगड़ गया है। कितने इस्तेहकाक से वो बात कर रही थी। हालांकि इनके दरमियान रिश्ता बंधे महीना भर होने को था और आज तक इसने खुद से इसे मुखातिब भी नहीं किया था। मुनीब अहमद की गुनगुनाहट रुक गई थी और अब वो अंदर से दोनों के कहकहे लगाने की आवाज आ रही थी। बात सुनो मेहरुन्निसा, अम्मा ने पुकारा तो वो खाली नजरों से उन्हें देखने लगी। इधर मेरे पास बैठो। उन्होंने अपने करीब जगह बनाई और खामोशी से बैठ गई। समातें मुंतजिर थीं। वो अब क्या कहेंगी इससे? यही कि तुम हमारी पसंद नहीं हो, हमारी पसंद फिजा है, हमारे बेटे से गलती हो गई, वगैरह वगैरह। मेहरुन्निसा, हमारी मजबूरी है। अभी तुम्हारा तारुफ मुनीब अहमद की दुल्हन के तौर पर नहीं करवाया जा सकता। बरादरी का मसला है। मुनीब अहमद के तो फैसले करने और फिर फैसले पर अमल करने में देर नहीं लगाई, मगर अब जो मुश्किलात पेश आएंगी इस इंकशाफ के बाद, उसका अंदाजा इस बेवकूफ़ को भी नहीं हुआ। हम इसकी खुशी में खुश तो हैं, मगर खानदान बरादरी में रहने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। फिजा इसकी बचपन की मंगेतर है। सारा खानदान हमारे मिलने जुलने वाले इस रिश्ते से वाकिफ हैं। आपा ने कई रिश्तों को छोड़कर मुनीब अहमद के लिए हाँ कही थी।
अब अगर जब खानदान वालों को खबर होगी तो किस कदर बदनामी होगी, हमारी भी और फिजा की भी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? वो धीरे धीरे अपनी मजबूरियां बयान कर रही थी। वो क्या करती, किससे कहती? तकदीर ने तो खुद उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, और अब वो किस बरते पर लोगों से अच्छे सलूक की तवक्का रखती थी? इससे तो अच्छा था वो कहीं डूब के मर जाती। ये झंझट तो न रहता। मरने से पहले कितनी बार मरता है इंसान। फिजा मुनीब अहमद को लेकर बाहर चली गई थी और मेहरुन निसाब ने हक को इस्तेमाल करने का सोचती रह गई। बड़ी रौनक थी शोर हंगामे की ये महफिल। कम से कम मेहरू के लिए तो नहीं थी। जहां से वो आई थी वहां तो किसी लड़के की तरफ नजर उठ जाने पर भी सौ सौ कहानियां जन्म लेती थीं। और यहाँ लड़कियां लड़के आजादाना घूम फिर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। किसी को परवाह ही ना थी, और वो एक तरफ सिमटी सिमटाई बैठी थी। फिजा के भतीजे की सालगिरह थी और वो इसे बस इसरार लेकर आई थी। वो तो इनकार ही करती रही थी। उसे ख्वामख्वाह उलझन होने लगती थी, और जो उसे पता चल जाता वो उसका हक अपने लिए तफवीज कर चुकी है तो वो क्या सलूक करे उसके साथ। शायद नफरत से थूक दे उसके चेहरे पर, ठोकर मारकर परे फेंक दे। अरे मेहर, तुम यहाँ क्यों सबसे अलग थलग बैठी हो? आओ ना, इंजॉय करो। फिजा उधर से गुजरी तो उसको यूं अकेले बैठे देखकर साथ उठा ले गई। फिर उसे अपने सब कजन से तारुफ करवाती फिरी। मुनीब अहमद जाने कहाँ था, कभी कभी तो वो उसे सायादार शजर की तरह महसूस होता। अगरचा ऐसा कोई एहसास तहफ़्फ़ुज़ उसने नहीं दिया था, मगर फिर भी अपने और उसके दरमियान बंधा ताल्लुक उसे बहुत सुकून देता था। वो कन अखियों से उसकी जानिब तकती रहती और सोचती, ये इतना मजबूत मर्द उसका है। फिर कितनी देर उस मधुर ख्याल में मगन रहती कि अचानक फिजा की मुतरन्नम हंसी उसे हकीकी दुनिया में ले आती। नहीं, वो तो इस कहानी का तीसरा किरदार अदा कर रही है, थर्ड पर्सन, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायूसी उस पर फिर हमलावर हो जाती। एक लम्हा कबल का एहसास तहफ़्फ़ुज़ भग से उड़ जाता, और वो खुद को फिर से तपती धूप में खड़ा महसूस करती। कहाँ गुम हो? फिजा ने उसका बाजू जोर से हिलाया तो वो चौंक कर देखने लगी। वहशत करना शेवा है अच्छी आंखों वालों का। किसी ने बड़ा लहक कर मिसरा पड़ा तो वो झीम कर रह गई। कहाँ से लाई हो फैजी इसे? किसी ने पूछा। कहाँ से क्या मतलब? भई इसी दुनिया की मखलूक है ये, फिजा ने हंसकर कहा। अच्छा, मैं समझा शायद मुरीख से भूलकर इधर आ निकली है। मजाक उड़ाया गया। बदतमीजी नहीं मुराद, भला मुरीख पर ऐसी नादिर अशिया कहाँ? ये यकीनन चांद पर से आई हैं। ओहो महजबीन नाजनी, सॉरी यार, मुझे खबर नहीं थी। मुराद ने माजरत करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेहरू को तो जैसे किसी करंट ने छू लिया। उसने बहुत तेजी से अपना हाथ खींचा था। मुराद को इस रद्द अमल की तवक्का नहीं थी, इसीलिए खफीफ सा मेहरू की तरफ देखा और फिर दूसरी सिमत मुंह किए जाने किस पर गुस्सा उतारने लगा। मेहरू की आंखों में आंसू भर आए। उसने हिम्मत कैसे की इसका हाथ पकड़ने की? वो शिकायती नजरों से फिजा को देख रही थी, जो खुद मेहरू के रद्द अमल पर परेशान थी। सॉरी मेहरू, तुमने माइंड किया। दरअसल हम सब फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज, और फिर यहाँ का माहौल भी खासा आजादाना है। हम लोग ऐसी बातों पर बुरा नहीं मनाते। असल में सारी बात दिल में मैल आने की है। हमारे दिल साफ हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर हम तवज्जो नहीं देते। वैसे फिक्र मत करो, तुम भी चंद दिनों में इस माहौल में ढल जाओगी। बल्कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि तुम खुद पर भी हैरत करने लगोगी। वो उसका हाथ हाथों में लिए बड़े जोश से कह रही थी, और मेहरू का मीटर घूमता जा रहा था। उसे अब भी अपने हाथ पर वो लम्स दहकता महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे वो कुछ देर और यहाँ रही तो उसका दम घुट जाएगा। घबराकर वो हाल से बाहर निकल आई। बाहर मौसम खुशगवार था। हल्की हल्की ठंडी हवा ने मन की तपिश कुछ कम की। वो लॉन में आ गई। जूता उतार कर वो घास पर चलने लगी। ठंडी ठंडी घास पर पांव पड़ते ही एक खुशगवार तमानियत का एहसास हुआ। दिल पर छाया गुबार धीरे धीरे कम होने लगा। अंदर शोरगुल जारी था। वहां की निस्बत यह माहौल बेहद पाकीज़ा पाकीज़ा सा लग रहा था। नरम चांदनी में उठे हुए सरों के दरख्त और इनके दरख्तों के लंबे साए, इन दरख्तों के लंबे साए दो दो रैया के तारों के दरमियान चलते हुए वो एक लम्हे कोई इर्द गिर्द के माहौल से कतई बेखबर हो गई थी कि अचानक ही वो जैसे चौंक गई। कोई बोल रहा था धीरे धीरे, जैसे कोई शायरी पढ़ रहा हो। करीब ही, बहुत करीब। उसने अपने कदम आवाज की सिमत मोड़ लिए। दुख की लय पर धीरे धीरे रक्स करें तो आंखें तस्वीरों को अक्स करें, या इसमें मिट जाएं उस जैसा बनकर, या फिर इसको भी अपने जैसा शख्स करें, या इसको भी, या इसको भी। गंभीर आवाज मेहरू के उठते कदम रुक गए। रख के तने से टेक लगाए वो कोई अजीब सा शख्स लगा। इसे आहट पर इसने मुड़कर देखा और मेहरू ने खौफजदा होकर चीख मार दी। क्या हुआ? वो तेजी से उसकी तरफ लपका और मेहरू की आवाज ने साथ छोड़ दिया। वो लहरा कर नीचे गिरने को थी कि दो मजबूत बाहों की पनाह में आ गई।
बड़े दावे करती हैं, प्ले कार्ड उठाए जुलूस निकालती फिरती हैं ये खवातीन, और हालत ये है कि अपने साए से भी डर जाती हैं। वो पलके मूंदे पड़ी थी और मुनीब अहमद की आवाज को बहुत करीब महसूस कर रही थी। उसे किसने कहा था वहां जाने को? वो शायद किसी से पूछ रहा था। जाहिर है खुद ही गई थी। मेरे साथ थी, मुराद ने हाथ पकड़ लिया था शायद, इसीलिए अपसेट हो गई और चलते चलते शाबी भाई के पास पहुंच गई। वैसे वो इतने खौफनाक हैं तो नहीं कि इन्हें देख के बंदा बेहोश ही हो जाए। ये फिजा की आवाज थी। हाथ? मगर मुराद ने इसका हाथ क्यों पकड़ा था? वो एकदम सीख पा हुआ। फिजा ने बेहद हैरत से उसे देखा। इसमें इतनी खफा होने वाली कौन सी बात है मोबी? और फिर मुराद ने कई बार मेरा हाथ भी तो थामा है, इसका गलत मतलब लेना। छी छी। उसने तासुब से मुनीब अहमद को देखा और मेहरू के दिल में जैसे कोई चुटकियां लेने लगा था। मुनीब अहमद ने बुरा मनाया था, यानी वो उसे अपना समझता है। ओह, कैसा खुशकुन एहसास था। उसने फौरन आंखें खोल दी। मुनीब अहमद बिल्कुल उसके बेड की साइड पर बैठा था। जरा परे फिजा भी मौजूद थी। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। मुनीब अहमद ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और उसे कभी का पड़ा हुआ एक शेर याद आ गया। उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। सारे खौफ जैसे हवा हो गए थे। लो, अब तुमने भी तो इसे छुआ है, अब क्यों नहीं हुआ कुछ? फिजा बिगड़ कर बोली। हाँ, मेरा तो हक है इस पर। बेसाख्ता ही मुनीब अहमद के मुंह से निकला था। मेहरू ने चौंक कर मुनीब अहमद को देखा। फिजा तो आंखें फाड़े मुनीब अहमद को देखे जा रही थी। कैसा हक मुनीब अहमद? क्या भूल गए कि ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है? उसका अंदाज जताने वाला था। पता है फिजा, निकाह के 3 बोलों में कितनी तासीर होती है। मुनीब अहमद का हाथ अभी तक उसकी पेशानी पर था और मेहरू को लग रहा था जैसे उसका सारा जिस्म ठंडा हो रहा हो। ये मुनीब अहमद था, इसकी हमायत में बोलता, इसके लिए लड़ता और इस पर हक जताता। निकाह? क्या कह रहे हो मुनीब अहमद? वो रुहासी हो गई। सॉरी फिजा। मुनीब अहमद ने सर झुका लिया। तुम अम्मा से पूछ लेना, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। अगर समझदारी से काम लो तो यकीनन तुम मेरी हम ख्याल होगी। प्लीज ठंडे दिल से सोचना। और फिजा मुंह पर हाथ धरे कमरे से भाग निकली। मुनीब अहमद का दिल तड़प गया। वो उसकी मोहब्बत थी। आज तक उन्होंने एक दूसरे के हवाले से जिंदगी बरती थी। इन दोनों में इतनी जहनी हम आहंगी थी कि बिना कहे एक दूसरे की बात जान लिया करते थे। दोनों की पसंद नापसंद एक थी। जिंदगी के बारे में जितने ख्वाब थे मुश्तरका थे। फिर यकायक मुनीब अहमद ने राह क्यों बदल ली, और वो भी बिना बताए? वो तो इसे बताए बगैर कोई काम नहीं करता था। अपने तमाम दिन की तफसील उसे सुनाता कहाँ गया? किसी दोस्त से मिला, क्या बात हुई, हत्ता कि खाना पीना भी। फिर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने बिना बताए कर लिया था। अपनी जिंदगी की राहें बदलनी थी और उसे खबर तक ना हुई थी। वो कैसी बेखबरी में मारी गई थी। फिजा जमीला, किस कदर भोली थी तुम, किस कदर। दिल और ख्वाबों के टूट जाने पर वो जितना मातम करती कम था। मुनीब अहमद ने उस पर बड़ा जुल्म किया था। क्या हो गया है फिजा? तुम्हें यूं अंधेरा किए क्यों पड़ी रहती हो? मुनीब अहमद कई बार आया है, तुम इससे भी नहीं मिली। लड़ाई हो गई है क्या? भाभी उसके सर पे खड़ी पूछ रही थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। उसने फिर से कंबल मुंह तक खींच लिया। बाहर खाला अम्मी आई बैठी हैं, तुम्हारा पूछ रही हैं। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। उसने इनकार कर दिया। उसका दिल किसी से भी मिलने को नहीं चाह रहा था। मुनीब खाला, सब ने तो उसे धोखे में रखा था। मुनीब अहमद ने शादी कर ली और उसे खबर तक ना हुई। खाला अम्मा और खालू अब्बा जानते थे, मगर उन्होंने भी कुछ ना बताया। बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई। हालांकि कैसे बेटी बेटी कहते मुंह सूखता था इनका। अच्छा, खुशखबरी तो सुन लो, खाला अम्मा तारीख लेने आई हैं। हाँ तो दे दें। मैंने कौन सा है क्या? कंबल परे फेंक कर वो तो उछल कर बैठ गई। भाभी ने कान में बताया मुस्कुराते हुए। नहीं, मुझे इस शादी से इनकार है। लहजे में बेपनाह सख्ती समेटे वो कह रही थी। भाभी ने हैरानी से उसे देखा। ये मजाक का कौन सा वक्त है? मजाक नहीं, हकीकत है। मुझे मुनीब अहमद से शादी नहीं करनी, और प्लीज अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। भाभी हक्का बक्का बाहर निकल गईं और वो एक बार फिर तकिए में मुंह दिए रोने लगी। ये ख्याल कि मुनीब अहमद उसका नहीं रहा उसको फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देता था। वो नूरी को खत लिख रही थी कि अम्मा चली आई। खामोशी से आन कर इसके करीब बैठ गई। कोई काम है? उसने पेन बंद करके रख दिया। फिजा को खैर हो गई है कि तुम मुनीब अहमद की फिजा को खबर हो गई है कि तुम मुनीब अहमद की बीवी हो। बिला तमहीद वो कहने लगी। खबर नहीं, अब क्या तूफान आए। मैं तो
चाह रही थी कि फिजा दुल्हन बनकर आ जाए, फिर मसला इतना तो नहीं रहेगा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया है। पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह खैर करे। वो ठंडी आह भरकर खामोश हो गईं, जबकि महरू इस खबर से ही लरस गई थी कि मुनीब अहमद फिजा को ब्याह लाएगा। वो कभी खुश नहीं हो सकती थी। जहाँ खुशी दस्तक देगी, पीछे सैकड़ों दुख भी आन मौजूद होंगे। इसने नूरी को लिखे खत को दोबारा पढ़ना शुरू किया, जिसमें इसने लिखा था कि जिंदगी सहल हो ही गई है। कहाँ, ये तो अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मगर क्या जरूरी है कि मैं इनको भी परेशान करूं? उसने सोचा और फिर खत को बंद कर दिया। कभी तो सफर खत्म होगा, कभी तो। शाबी भाई, मैं आ जाऊं? फिजा दरवाजे में खड़ी इजाजत मांग रही थी। शाबी ने अपनी लाल अंगारा आंखें इस पर डाली, फिर इस बात में सर हिला दिया। वो धीरे धीरे चलती उनके करीब आ बैठी। वो किताब में मुस्तगिर थे। शाबी भाई, एक बात तो बताएं। वो मुखल हुई। आप सारा दिन खुद को मसरूफ रखते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। क्या आप नगमाना को बुलाने में कामयाब हो गए हैं? क्या वो आपको याद नहीं आती? क्या जिंदगी में कभी आपको उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? किताबें वाकई सब कुछ भुला देती हैं? शाबी ने बेहद हैरत से फिजा को देखा। वो तो बड़ी खुशबाश रहने वाली लड़की थी। अब ये कैसा कुर्ब उसकी आंखों में मुंजमद हो गया था। फिजा बीबी, वो हंसे, तुम बड़ी भोली हो। क्या ऐसा हो सकता है? किताबें बेहतरीन साथी हैं, मगर कभी कभी इन किताबों के बेजान गूंगे लफ्ज सांप और अजदहे बन जाते हैं। फन लहराए लम्हा लम्हा डसते हैं, और इंसान किसी से कुछ कहने का भी नहीं होता, इसीलिए कि हंसने वाले हंसते हैं, कोई साथ मिलकर रोता नहीं है। अपना गम सिर्फ अपना होता है, उसे खुद ही सहना होता है। माना नहीं, नगमाना को बुलाना मेरे बस की बात नहीं थी और ना है। मगर अब वो क्या कहा है किसी शायर ने, मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। और ये मंतुशदम वाली बात जब समझ में आ जाए, रूह में रच जाए, तो फिर जरूरत नहीं रहती। रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई। और सच्चा इश्क यही है, यार के रंग में रंग जाना, उसकी मोहब्बत का दिया दिल में रोशन करना, फिर इसी रोशनी में सब कुछ देखना। फिर कहाँ मन और तू का फर्क रह जाता है। या इसमें मिट जाएं इस जैसा बनकर, या उसको भी अपने जैसा शख्स करें। मन शुदम रांझा रांझा कर दी, मैं आप ही रांझा हुई मन तो शुदम। वो जैसे वजद में आ गए थे, बार बार इन्हीं लफ्जों की तकरार कर रहे थे। और फिजा हमीद का दिल एक बार फिर भर आया। दर्द की नोयत यकसा हो, बंदा खुद भी जख्म खोरदा हो, तो आंखें भीगते देर नहीं लगती। वो भी शाबी भाई जैसी कैफियत में मुब्तला हो रही थी। वो भी खो चुके थे और उसने भी गंवा दिया था। अब देखना ये था कि इसमें शाबी भाई जितना सब्र और हौसला कब आता है, कब वो भी मन तो शदम रांझा रांझा कर दी रांझा हो जाती। उसने एक नजर शाबी भाई के बंद पलकों पर डाली, जो अभी तक मन तो शदम का वर्द कर रहे थे, और उठाई। बंद किताबों में छुपी कहानियां फिर से सामने आने लगी थीं। नीली आंखों, ब्राउन सुनहरे बालों और गुलाबी गालों वाला शाबी जब इस घर में आया, तो अम्मा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात बेहद वाज़ेह देखे जा सकते थे। कौन है ये? इन्हें और ही खदशा लाहक हुआ था। जो भी हो, बहरहाल ये अब यहीं रहेगा, और इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अजीज है मुझे। अब्बा कब अम्मा से डरते थे। फैसला सुनाकर शाबी को लेकर चले गए, और अम्मा कहाँ बर्दाश्त कर सकती थीं कि इनके बेटों के मुकाबले में किसी और को अजीज रखा जाए। इनकी बेटियों के मुकाबले में वो बेटियां जिन्हें कभी प्यार की खैरात तक ना मिली थी, अब किसी और को अजीज रखने का बताकर गोया अब्बा मियाँ ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। वो जितना शाबी को नजरअंदाज करती, अब्बा मियाँ को वो उतना ही अजीज हो जाता, और वो उससे कांच के खिलौने की तरह पेश आते। इतनी नरमी और मोहब्बत होती उनके लहजे में कि अक्सर फिजा, रमाना और छोटा सुहेब भी चौंक जाते। इस तरह अब्बा मियाँ कभी उनसे तो पेश नहीं आए थे, और इनके रवैये से अम्मा का शक यकीन में बदल गया। शाबी उनका अपना बेटा था। अक्सर जब उनका गुस्सा हद से सवा हो जाता, तो वो चिल्लाने लगती, मुझे बताएं किस सोतन का बेटा है ये? और अब्बा मियाँ निहायत सुकून से कहते, जिस सोतन का भी है, तुम्हें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। उनका ये लहजा अम्मा के सीने में दबी नफरत की आग को भड़का देता, और वो ये नफरत आगे बच्चों में मुंतकिल कर देती। बच्चे थे मासूम जहनों के मालिक। जो कुछ उन्हें बताया जाता रहा, वो इन्हीं खतूत पर सोचते चले गए। और एक वक्त आया जब माँ की तरह वो तीनों भी शाबी से नफरत करने लगे। अब्बा मियाँ ने उसका दाखिला बेहतरीन स्कूल में करवाया था। वो खुद निहायत ज़हीन था। तमाम तर तवज्जो पढ़ाई पर देता, और टाइम पढ़ाई से बचता इसमें वो अपने छोटे मोटे काम कर लिया करता, जिनमें कपड़े धोना और अपने कमरे की सफाई करना होता। वक्त गुजरा, शऊर की मंजिल पर कदम रखा, तो इर्द गिर्द के सारे माहौल में नफरत ही नजर आई। अब्बा मियाँ की कमर बुढ़ापे ने झुका दी थी, वो क्रॉफर नहीं रहा था, और ऐसे में अम्मा और शेर हो गई थी। अब इन्हें शाबी को मजीद अजियत देने की छूट मिल गई थी।
उन्हें तंग करने के सारे हरबे इन्हें असबर थे। आधी रात का वक्त होता, सारा जहां ख्वाबे खरगोश के मजे लेता और अम्मा शाबी के सराहने खड़ी चिल्ला रही होती, उठो शाबी के बच्चे, बाजार से फलां चीज ले आओ। और शाबी बिला चूं चरा आंखें मलता रवाना हो जाता। कह ना सकता उस वक्त बाजार बंद होगा, तेज बारिश हो रही होती तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता। जाहिर था इतनी सर्दी और बारिश में जुहेब तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था। हाँ, शाबी को दौड़ा दिया जाता। भीगता, हाँफता, कांपता वो सर दर्द की दवा लेकर आता तो अम्मा का जी घबराने लगता। उन्हें किसी फल की जरूरत महसूस होने लगती और शाबी माथे पे बल डाले बगैर भागम भाग जाकर काम करता रहता। और इस कदर थका देने वाली जिंदगी के बावजूद पता नहीं कब और कैसे वो मोहब्बत करने लगा था माना से। वो नकचिड़ी सी लड़की जो अपने आप के अलावा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, वो शाबी के मन में आ बैठी थी। वो उसकी पूजा करने लगा था, चुपके चुपके, मन ही मन में। और अब्बा मियाँ से उसकी ख्वाहिश छुपी ना रही थी। शाबी तू इतना बड़ा हो गया, वो उसे मोहब्बत से तक रहे थे और शाबी भेद गुल जाने पर शर्म से चेहरा झुकाए खड़ा था। फिक्र मत करो, माना तुम्हारी है, उन्होंने उसे साथ लगाकर तसल्ली दी थी। और वो उसके लिए इतना ही काफी था। माना उसकी हो सकती थी और नहीं क्या हुआ, अब्बा मियाँ के अल्फाज का असर था। और पता नहीं क्या हुआ कि अब्बा मियाँ के अल्फाज का असर था या फिर उसके अपने जज्बों की शिद्दत कि वो माना पर मलकियत जताने लगा। अम्मा पहले तो उसके अंदाज पर चौंकी। ये डरा सहमा सा शाबी तो नहीं था। फिर इस पर कड़ी नजर रखने लगी। और जिस रोज इन्हें अब्बा मियाँ और शाबी के नापाक अजाइम की दानस्ता खबर हुई, एक तूफान खड़ा कर दिया। माना भी कम गुस्से में नहीं थी। उसने ये सोचा भी कैसे, वो खोलती हुई शाबी के कमरे में आई, धड़ से दरवाजा खोला। शाबी बेड पर लेटा था, दरवाजे की जानिब भी तक रहा था, जैसे उसे यकीन था कि घर में होने वाले हंगामे की आवाजें बखूबी यहाँ तक आई थीं। आओ माना, रुक क्यों गई? बेहद नर्म और पुरस्कून सा लहजा उसके इस अंदाज पर एक लम्हे को तो माना गड़बड़ा कर ही रह गई, मगर अगले ही लम्हे फूं फूं करती वो उसके करीब आ खड़ी हुई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हमारे टुकड़ों पर पलने वाले 2 टके की इंसान, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? गुस्से से उसका चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। शाबी नरम सी मुस्कुराहट लिए उसका चेहरा देखता रहा। फिर बोला, मैंने कब कहा कि तुम मुझसे शादी करो? शादी तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे मोहब्बत है तुमसे। माना तो उसकी जुर्रत पर दंग ही रह गई। शाबी तुम होश में तो हो? वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो दोनों बाजू सर के पीछे किए मजे से लेटा उसे तकता रहा। वो गुस्से से मुठ्ठियां भेजती रही। फिर एकदम उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर आया। कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर मुंह पर हाथ रखे भागती चली गई। उसके जाने के फौरन बाद अम्मा का नजूल हुआ और जिस हद तक वो उसको बुरा भला कह सकती थी कहा। शाबी ने सर झुकाए हमेशा की तरह सब कुछ सुना और बाहर निकल गया। अम्मा का गुस्सा फिर भी खत्म ना हुआ और ये गुस्सा क्रॉकरी और दूसरी चीजों पर उतरा। अब्बा मियाँ कमरा बंद किए बैठे थे। फिजा और जुहेब खामोश तमाशाई बने सब देख रहे थे। अम्मा तो गुस्सा उतार कर कपड़े बदल सो रही, मगर माना की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। तमाम रात शाबी घर नहीं आया, वो लॉन में टहलती रही। अब्बा मियाँ ने 2 एक बार कमरे की खिड़की से झांका था और माना को यूं परेशान देखकर मुस्कुरा उठे थे। शाबी की जीत का इन्हें पक्का यकीन हो गया था। सुबह 10 बजे के करीब शाबी की वापसी हुई। माना अम्मा के खौफ से कमरे में जा चुकी थी, मगर जान अब तक सूली पर लटक रही थी। हर हर आहट पर वो चोरी छुपे बाहर झांकती थी। जुहेब ने उसे अंदर आते देखा तो चिल्लाया। शाबी की वापसी। माना नंगे पांव बाहर दौड़ी। वो इर्द गिर्द तवज्जो दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। माना उसके पीछे पीछे चलती आई। शाबी कपड़े बैग में रख रहा था, वो जा रहा था। उसके दिल को कुछ होने लगा। शाबी, धीरे से पुकारा। शाबी के हाथ थम गए। मुड़कर देखा, दरवाजे के बीच वो सर झुकाए खड़ी थी। मत जाओ शाबी, इल्तिजा थी उसके लहजे में। और वो सहरजदा हो गया। इस दिन का तो उसने बरसों इंतजार किया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ शाबी, कहकर वो मुड़ गई। मुख्तसर से जुमले में उसके लिए जिंदगी की सारी खुशियां थीं। उसका जी चाहा वो सारी दुनिया को चीख चीख कर बताए। आज वो जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत गया है। अब माना को उससे कोई नहीं छीन सकता था। अम्मा को तो सुनकर कितनी देर यकीन न आया। माना खुद कह रही थी कि वो शाबी से शादी करेगी। वो तो सख्ते की कैफियत में आ गई थी और जब ये सख्ता टूटा तो उन्होंने माना को बेतहाशा पीट डाला। तुम चाहती हो मैं इस 2 टके के छोकरे के सामने हार मान लूं? हरगिज नहीं, मर जाऊंगी मगर ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो चीख रही थी। ऐसा जरूर होगा, ख्वाह तुम मर जाओ। अब्बा मियाँ का हमेशा वाला लहजा और अम्मा, वो तो हार मानने पर तैयार ही ना थी। जाने कहाँ से रिश्ता ढूंढकर माना की बात तय कर दी।
चुपके से अब्बा मियाँ को खबर तक ना हुई। वो सोच भी ना सकते थे कि वो दुश्मनी में इस हद तक बढ़ जाएंगी कि अपनी ही बेटी को दांव पर लगा देंगी। मुनीब अहमद की वालदा ने कितना समझाया था कि वो बेकार की जिद को छोड़ दें, बच्चों की खुशी है, मगर उन्होंने एक ना सुनी। अब्बा मियाँ को अचानक ही जरूरी काम से जद्दा जाना पड़ा और अम्मा ने मौका गनीमत जानते हुए निकाह की तारीख दे दी। माना पुरजोर एहतजाज पर थी। शादी भी बिफरा हुआ था, मगर इन्हें कब परवाह थी। और फिर वो सब कुछ हो गया जो कम अज कम किसी के वहमो गुमान में ना था। माना ने हर तरफ से मायूस होकर ख्वाब आवर गोलियां खाईं। किसी को पता भी ना चल सका, और ऐन उस रोज जब उसके हाथों पर मेहंदी रचाई जाने वाली थी, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अम्मा तो सकते में रह गईं। माना इस हद तक जा सकती थी, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी ना सोचा था। और फिर इन्हें कौन सा जमाना माना से दुश्मनी थी। वो तो शाबी से नफरत करती थी, और इस नफरत में वो अपनी बेटी से हाथ धो बैठी थी। अब्बा मियाँ लौटे तो उनका इस्तकबाल माना के कफन में लिपटे वजूद ने किया। एक औरत की बेइज्जती ने पूरा घर मातम कदा बना डाला था। शाबी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो पागलों की तरह इधर उधर चकराता फिर रहा था। माना मोहब्बत में उसे जीत गई थी। वो तो कुछ भी न कर सका था उसके लिए। मरने से पहले रात को वो उसके पास आई थी और कहा था वो इसे यहाँ से भगा ले जाए, वरना अम्मा उसकी शादी करके रहेंगी। और शादी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एहसान फरामोश बन जाता। वो ऐसा कर लेता तो अब्बा मियाँ का सर झुक जाता, बरसों की बनी इज्जत खाक में मिल जाती। उसने माना को समझाया था कि वो अम्मा की बात मान ले। वो खुद भी वहां से जा रहा था, मगर माना तो ज्यादा ही जल्दबाज निकली। माना को दफन करने के बाद अब्बा मियाँ ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, जिस शाबी से इतनी नफरत करती हो ना तुम, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सगे भाई का बेटा है, जमाल का बेटा। उसने यहाँ से जाने के बाद शादी कर ली थी कबायली औरत से, मगर जैसा कि उसकी तबीयत में हरजाईपन और फिरौनियत थी, वो औरत भी निभा ना कर सकी पहली औरत की तरह। जमाल वहां से अपने बेटे को लेकर भाग आया कि वो लोग उसके पीछे थे। बेटा मेरे हवाले करते हुए उसने इल्तिजा की थी कि किसी को पता ना चले शाबी जमाल का बेटा है। और तुमने सिर्फ इस राज को राज रखने की सजा दे दी कि उसके साथ अपनी बेटी को भी गंवा बैठी। ऐसी भी क्या जिद, ऐसी भी क्या नफरत। और अम्मा चीख चीख कर रोने लगी। वो अनजाने में बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी थी, जिसकी तलाफी किसी तौर पर भी मुमकिन ही नहीं थी। शाबी उनका अपना खून था, और वो उसे क्या समझती रही। शाबी को तो चुप लगी सो लगी, अम्मा को भी चुप लग गई। वो एहसासे गुनाह के भारी बोझ तले दबी थी, इतना कि वो शाबी से नजरें भी ना मिला सकती थी। और शाबी ने तो कोई शिकवा भी ना किया था, बस खामोश हो गया था। जिंदगी की सबसे बड़ी हाजी बाजी हार कर भी वो दिन ब दिन पुरसकून होता चला गया। और अम्मा की बेसुकूनी इतनी ही बढ़ती चली गई। कभी कभी तो उसे लगता जैसे वो किसी बर्फ के तोदे के साथ जिंदगी गुजार रही है। मुनीब अहमद कभी तो इतना मेहरबान होता, इतनी चाह जताता कि वो समेट ना पाती, पूर पूर भीग जाती। और कभी वो इतना बेगाना अजनबी बन जाता कि दिनों ख्याल ना रहता उसके साथ कमरे में कोई और जी रूह भी मौजूद है। और तब तब महरू उसकी आंखों में फिजा हमीद की तलब को तड़पते देखती। वो सोचती कि वो खामखा उनके बीच आ गई। तकदीर ने ये खेल ना खेला होता तो कम से कम दो लोग तो पुरसकून जिंदगी गुजार रहे होते। अपनी आग में वो खुद ही जलती रहती, अपनी रसोइयां खुद ही समेट लेती। या फिर वो ही इतना गैरत और जोश वाला ना होता, छोड़ आता, अपनी जान बचा लेता। उदासियां उसके मन में उतरने लगती और वो तब ही इसके हाथ थाम लेता। चुप क्यों हो। उसकी आंखें भीगने लगती और पूरों पर उसके आंसू चुन लेता। नहीं महरू जान, मैंने तुम्हें खुशियां देने का अहद किया है। वो उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर जब्त करता, फिर उसे घुमाने ले जाता, कभी अम्मा और नूरी से मिलवाने भी ले जाता। नूरी ने घर में सिलाई सेंटर खोल लिया था। अम्मा ने उसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी थी, और वो इसको ब्रोएकार लाकर मेहनत से घर का खर्च चलाने लगी थी। लोग अब तो कुछ नहीं कहते। उसने नूरी से पूछा तो वो बड़े एतमाद से मुस्कुराई थी। मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करती, बल्कि यूं समझो मेरे पास टाइम ही नहीं है जमालो आपा की लगाई बुझाई वाली बातों पर गौर करने का। और तब उसने सोचा काश वो भी नूरी की तरह बेहिस होती, लोगों की बातों पर ध्यान ना देने वाली। फिर शायद जिंदगी मुख्तलिफ होती। मुनीब अहमद कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ गया था। नूरी ने ही जिद की थी, उसका भी जी चाह रहा था। मुनीब अहमद से कहा तो उसने ये कहकर इजाजत दी, अम्मा से पूछ लो। और अम्मा ने बखुशी इजाजत दे दी। कबूल तो वो उसे कर ही चुकी थी। मुनीब अहमद की खुशी उनकी खुशी थी। और फिर जैसे हालात में वो ब्याह कराई थी, इसमें वो तो बेकसूर ही थी। अम्मा भी औरत थी, औरत के दुख को समझती थी। बड़ी दोनों बेटियों को भी वो बहुत पसंद आई थी। और रिदा और फौजिया मारिया तो पहले ही दिन से उसके साथ दोस्ताना अंदाज में चली थी। जिंदगी ज्यादा नहीं तो बेहद खुशगवार हो ही गई थी।
तकलीफ दा सोचों ने कुछ पीछा तो छोड़ा था मगर मुकम्मल नहीं। अब भी कभी वो फारिग होती तो उसे लोगों के रवैये याद आने लगते। फिर अम्मा को देखती तो अब्बा याद आ जाते, जिन्होंने आज तक पलटकर बेटियों का अहवाल भी ना पूछा था। बीवी का तो क्या ही पूछते, औलाद से रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। पता नहीं वो कितने जालिम होते होंगे, अम्मा पर कैसे जुल्म करते होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी। बेहद खौफनाक, बड़ी बड़ी मूछें, लाल अंगारा आंखें, हाथ में सुल्तान राही की तरह का गंडासा। बेसाख्ता ही उसे हंसी आ गई। नूरी जो किसी काम से अंदर आई थी उसे यूं हंसते देखकर पूछने लगी, खैरियत मोहतरमा? पहले हंसी वाली बात पर हंसी नहीं आती थी, अब यूं अकेले अकेले इस कदर जोर से हंसा जा रहा है। हम भी देखें वो जाफरान के खेत। मैं सोच रही थी नूरी, हमारे अब्बा कैसे होंगे? बहुत ही जालिम जाबिर किस्म के, हाथ में गंडासा, बड़ी बड़ी मूछें और लाल लाल आंखें। बस यही कुछ तसव्वुर आया तो हंसी आ गई। तुमने कभी सोचा है हमारे अब्बा कैसे थे? फारिग बैठकर कैसी कैसी बातें सोचती हो तुम? मुझे क्या पता, मैं तो छोटी सी थी जब उन्होंने हाथ से पकड़कर आधी रात को अम्मा को निकाल बाहर किया था। और मेहरू, मैंने कभी सोचा भी नहीं, एक ऐसे शख्स के बारे में क्या सोचना जिसे किसी बात का एहसास ही ना हो। अम्मा जैसी भी थी, हम तो उनकी अपनी औलाद थे, कम से कम हमारा ही ख्याल कर लिया होता। अच्छा लो, उस वक्त गुस्से में ऐसा किया, मगर क्या बाद में भी, इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इनके दिल से गुस्सा नहीं उतरा? कभी हमारी अम्मा की याद नहीं आई? सच तो ये है मेहरू, औरत जितनी भी जान मार ले, मर्द के पैर धो धो कर पिए, उसे वो मुकाम कभी नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। मर्द हमेशा एक और की तलाश में रहता है। पहलू में दुनिया की हसीन तरीन औरत भी होगी, तब भी वो सामने खड़ी एक मामूली शक्ल और सूरत की औरत को जरूर देखेगा, दिलचस्पी से। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल निकल गई। तुम्हें क्यों अब्बा का ख्याल आ गया? खैर, अब तो सोचने के लिए तुम्हारे पास और भी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं। मुनीब भाई की बातें, आने वाले नए मेहमान की बातें, अच्छी अच्छी बातें सोचो, फजूल में दिमाग मत खपाओ। वो उसका सर थपकते हुए बाहर चली गई, मगर वो उसके कहने पर अमल ना कर सकी। नूरी अपने स्टूडेंट्स के साथ मशगूल थी। अम्मा दवा खाकर चुपचाप पड़ी थी। रमजान शुरू होने वाला था, इसलिए ईद के कपड़ों का रश बढ़ गया और नूरी की मसरूफियत में भी इजाफा हो गया था। वो सोच रही थी अब के मुनीब अहमद का फोन आएगा तो वो कह देगी कि उसे ले जाए। यहाँ उसका दिल नहीं लग रहा था, खामोशी सी खामोशी थी। वहाँ रीता वगैरह की वजह से घर में काफी रौनक रहती थी। फिर मुनीब अहमद भी था, कभी कभार कोई फंक्शन भी आ ही जाता। यहाँ तो अजीब तरह से मुंजमद जिंदगी थी। फोन भी जमीला आपा की तरफ से ही आता था। काफी दिन हो गए थे मुनीब ने फोन भी नहीं किया था। पता नहीं क्या बात हुई, दिल इसका वैसे ही घबराया रहता था। वो जमीला आपा की तरफ आ गई। हमेशा की तरह पुरतपाक खैर मुकद्दम था। उन्होंने सायरा को आवाज दी कि बहन के लिए चाय बना लाए, साथ में समोसे भी मंगवा लेना। मेहरू कौन सा रोज आती है। लहजे में वैसे ही मोहब्बतें थीं। वो जमीला खाला की अच्छाई की मोतरफ थी। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने पूछा, आपा, मुनीब अहमद का फोन तो नहीं आया था? लो भला, आता तो तुम्हें खबर ना होती, मैं फौरन ही तुम्हें बुला लेती हूँ। मैं समझी कोई मसला हो गया हो। उसने हाथ मसले। हाँ बेटा, जीती जान के 100 बखेड़े 100 मसले, एक को निपटाओ तो दूसरा सीना ताने खड़ा होता है। और फिर मर्द जात का तो वैसे भी कोई एतबार नहीं। जरा, अरे जरा बीवी की नजर इधर उधर हुई, पराई औरतों को ताड़ने लगते हैं। और फिर ऐसे मर्द जिनकी जबरदस्ती शादी करना पड़ जाए, कब भूलते हैं अपनी पहली जिंदगी को। हाँ, याद आया, मुनीब अहमद का तो पहले भी निकाह हो चुका था। क्या बना उस लड़की का? क्या छोड़ दिया मुनीब अहमद ने? बात को घुमा फिरा कर करना वो खूब जानती थी, जबकि मेहरू उनकी इस चालाकी को हमदर्दी पर महमूल करती थी। निकाह तो नहीं हुआ था, मंगनी हुई थी खाला की बेटी से। जाहिर है खत्म हो गई। उसका लहजा धीमा हो गया। मुनीब अहमद ने भुला दिया उस लड़की को? पता नहीं, अब क्या कहा जा सकता है। उसके अंदर झक्कड़ चढ़ने लगे। देखो बेटा, ऐसा मर्द जो शादी से पहले किसी और लड़की से मोहब्बत करता हो, उसके हाथ से निकलने के मौके बहुत होते हैं। वो बस इंतजार में होता है और जब इसको मौका मिलता है फुर से उड़ जाता है। ऐसा मर्द कभी भी इस लड़की को नहीं भुला सकता, लाख बीवी से मोहब्बतें जताए। मेरी मानो, मुनीब अहमद को काबू में रखो अभी से, बिल्कुल भी छूट मत देना उसे। हर वक्त कड़ी नजर रखा करो इस पर, और उस लड़की के सामने तो जाने मत देना। कहीं उसे देख के मोहब्बत भड़क उठे तो तुम क्या कर लोगी? जमीला आपा की बातें थी कि तलक हकीकतें। सच ही तो था। जब कभी फिजा हमी से उसका सामना हो जाता वो उसे भूल जाता था। अगरचा बाद में वो ठीक भी हो जाता था, मगर बिलफर्ज कभी ऐसा ना हुआ तो मोहब्बत जाग उठी और वो फिजा हमीद को ब्याह लाया तो वो क्या करेगी? वो घबरा कर वहां से उठाई। जमीला आपा उसे चाय के लिए रोकती रह गईं, मगर इनकी बातों के बाद क्या ऐसी कोई हाजत रह जाती थी? वहां से लौटी तो बेहद चुप थी। नूरी ने महसूस कर लिया और जान गई कि जमीला आपा ने हस्बे आदत फिर कोई बात या शोशा छोड़ा होगा।
اور مہرو جان اب کئی دنوں تک اپنی جان جلائے گی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اور کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھ لائی تو وہ بھی اسی گہری سوچ میں ابھی گم تھی۔ منیب بھائی کا فون نہیں آیا کئی روز سے، کہیں لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی؟ اپنی طرف سے اس نے دھیان بٹانے والی بات کی تھی، کیا پتا مسئلہ ہی یہی ہے۔ مہرو کی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ساری بات کہہ سنائی۔ نوری نے سر پیٹ لیا۔ یہ ساری باتیں جمیلہ آپا نے کہی ہوں گی۔ ہاں تو سچ ہی تو کہہ رہی ہیں وہ، میں خود جانتی ہوں۔ منیب احمد فضا کو بھول نہیں پایا، وہ اب بھی فضا ہی سے محبت کرتا ہے، مجھ سے تو مجبوری سے نبھا رہا ہے۔ اللہ سمجھے جمالو آپا تم سے، اس نے غائبانہ طور پر جمالہ آپا کو کوسا، پھر اسے سمجھانے لگی۔ غلط باتیں مت سوچا کرو، جمیلہ آپا تو یوں ہی گھر اجاڑتی ہیں، تم ہی عقل سے کام لو۔ یہ اتنا بڑا سر کیا بغیر دماغ کے ہے؟ پاگل لڑکی، منیب احمد کی کیا مجبوری کہ وہ تم سے نبھا رہا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ پہلی فرصت میں تم سے چھٹکارا پا لیتا۔ رہی بات فضا سے محبت کرنے کی، تو یہ ایک لاشعوری فعل ہے۔ ایک عرصہ دونوں میں ایک تعلق میں بندھے رہے ہیں، محبت کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے، اور اگر وہ فضا کو نہیں بھلا پایا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلتا کہ تمہاری محبت اور توجہ میں وہ شدت نہیں ہے جو فضا سے دور رہ کر بھی وہ اسی کے متعلق سوچتا ہے۔ پاگل مت بنو، اور خواہ مخواہ جمالو آپا کی باتوں پر کان دھر کے اپنی زندگی بھی مت خراب کرو۔ اس نے بڑے رسان سے سمجھایا تھا، مگر مہرو کی سوئی ٹھہر گئی تھی۔ اتنے دنوں سے منیب احمد کا فون نہیں آیا، یقیناً فضا کی محبت عروج پر ہوگی۔ بے دلی سے کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی۔ نوری جانتی تھی کہ اس کا سمجھانا بیکار گیا ہے۔ جمیلہ آپا کی باتوں میں زیادہ اثر ہے اس نادان لڑکی کے لیے، وہ کیسے اسے اس اثر سے نکال سکتی تھی جب تک کہ وہ خود ہی نہ سمجھ لیتی۔ دروازے پر دی جانے والی دستک بڑی زوردار تھی۔ مہرو اماں سے باتیں کر رہی تھی، گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی، جبکہ نوری اسی مطمئن انداز میں بیٹھی تھی۔ ایسی دستکیں اب بھی مہرو کو خوفزدہ کر دیا کرتی تھیں۔ دستک دوبارہ ہوئی تو نوری اٹھ کر دروازے کی طرف گئی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے جناب امیر الدین صاحب سے ملنا ہے، بڑے ہی شائستہ لہجے میں کہا گیا۔ جی؟ نوری کا چونک جانا فطری تھا۔ یہ کون تھا جو ایک مدت بعد نانا کو پوچھنا آیا تھا؟ کیا وہ بے خبر تھا کہ نانا اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ نوری نے دروازہ کھول دیا۔ فطری تجسس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے اب، آپ کو شاید علم نہیں۔ اوہ، میں بے خبر ہوں اس بارے میں۔ میرا نام جمال احمد ہے اور میں ان کا داماد ہوں۔ اس نے تعارف کروایا، اور نوری کے اندر جیسے بہت کچھ بلاسٹ ہوا تھا۔ یہ تھا وہ شخص، انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑنے والا؟ کیسا مہذب اور شائستہ دکھ رہا تھا اس سمے۔ یہ شائستگی اس وقت کہاں جا سوئی تھی جب رات کے اندھیرے میں ایک بے بس عورت اور دو بچیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا؟ تم شاید رشیدہ کی بیٹی ہو؟ وہ خود ہی آگے آیا۔ جی، صرف ان کی، وہ سرد مہری سے کہہ کر پلٹ آئی۔ جمال احمد پیچھے آ رہے تھے۔ مہرون نسا، مہر دیکھو، تم پوچھ رہی تھی نا اس روز ابا کیسے ہوں گے، دیکھ لو آ کر، وہ صحن کے بیچ میں کھڑی ہو کر اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مہرو تیزی سے باہر آئی۔ نور کے پیچھے ایک شخص ہاتھ میں بریف کیس تھامے چہرے پہ صدیوں کی تھکن سمیٹے کھڑا تھا۔ نور، مہر میری بچیاں، وہ بےتابی سے آگے بڑھا۔ مہر ساکت کھڑی تھی، جبکہ نوری پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روک رہی تھی۔ اماں آواز سن کر لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی تھیں اور صحن میں کھڑے جمال احمد کو پہچان کر اس سوچ میں گم تھیں 20 برس بعد آنے والے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ 20 برسوں کی مسافت اور درد کی شدتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیں، یا پھر معاف کر کے عورت کی ازلی وفاداری کا ثبوت دیں۔ نور، جمال احمد کا ہاتھ نوری کے کندھے پہ آن ٹکا، اور نور جو منہ موڑے کھڑی تھی پلٹی اور جمال احمد سے لپٹ گئی۔ آپ نے اتنا ظلم کیوں کیا ہم پر ابا؟ وہ سسکتے ہوئے ان کے سینے سے لپٹی کہہ رہی تھی۔ جمال احمد نے دوسرا بازو پھیلایا اور مہرو بھی ان کے بازوؤں میں سما گئی۔ 20 برسوں کی جدائی کے آنسو تھے، تھکن تھی، اذیتوں کے بے شمار پل تھے جو ان آنسوؤں میں ڈھلتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو رشیدہ، وہ اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، اور اماں ایک حرف شکایت لب پر نہ لائی تھیں۔ دل کی وسعتوں میں جہاں اتنا کچھ سمایا تھا، یہ بھی صحیح۔ صبح تک محلے میں خبر پھیل چکی تھی کہ رشیدہ کا شوہر لوٹ آیا ہے۔ خبر ساں ظاہر تھا جمیلہ اپا ہی تھیں۔ تمام عورتیں اماں کو مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ ابا سارا دن مہرو اور نور کو پاس بٹھائے رکھتے۔ بہت تڑپا ہوں تمہاری خاطر، اب اور نہیں۔ وہ انہیں سینے سے لگا کر پیار کرتے۔ وہ دونوں بھی بے حد خوش تھیں۔ کبھی جو دل میں ان کے لیے نفرت تھی وہ خود بخود محبت میں ڈھل گئی تھی۔ اب کہ رمضان شریف ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ثابت ہوا۔ صبح پہلا روزہ تھا اور نوری سحری کی تیاری کرتے ہوئے مہرو سے باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں، وہ پریشان تھی۔ 1.5 ماہ سے منیب احمد کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کا پریشان ہونا فطری امر تھا۔ نوری، منیب احمد کیوں نہیں آیا؟ ہیں، تم یہ سوچ رہی ہو، اور میں پاگل ہوں جو اتنی دیر سے باتیں کیے جا رہی ہوں؟ نوری نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ سچ مچ پریشان تھی۔ ایک بات کروں مہرو، یقین کرو گی؟
मुझे लगता है जैसे जमीला आपा ने कुछ गड़बड़ की है, वरना ऐसा तो नहीं कि वो पलट कर खबर भी ना लें। मगर उन्हें क्या जरूरत है कोई गड़बड़ करने की? भला क्या मुफाद है उनकी इस बात में? ये बात तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि जमीला आपा उसका बुरा सोचेंगी। तुम अभी तक जमीला आपा को समझ नहीं सकी हो, वो उसे ताज्जुब से देख कर रह गई। फिर रमजान शुरू हुआ तो मसरूफियत कुछ और बढ़ गई, जबकि महरू की जहनी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब्बा किसी जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे, कहकर गए थे कि वो वापसी पर इन्हें सरप्राइज देंगे। क्या बावजूद इसरार के ना बताया था और इस सरप्राइज का इंतजार करने लगी थी। अम्मा महरू की हालत से वाकिफ थी, इसलिए नूर से कहा कि वो उसे बाजार ले जाए। कुछ तो जहन बटे, और अब वो उसके सर पे खड़ी उसे तैयार होने का कह रही थी। मुझे कुछ नहीं लेना, वो बेदिली से बोली। मगर ईद पर नए कपड़े तो पहनोगी कि नहीं? नहीं पहनने मुझे नए कपड़े, वो रोहानसी हो गई। या वहशत, ये लड़कियां भी क्या चीज होती हैं। नूर आह भरकर बैठ गई। तमाम उम्र वालदेन के घर गुजारेंगी, 1 साल शोहर के साथ क्या गुजार लेंगी, उनके बगैर कुछ अच्छा नहीं रहता। हाय रे लड़कियां, तुम भी लड़की हो मत भूलो, और जब तुम्हारी शादी होगी तब पूछूंगी तुमसे, वो सुलग कर बोली थी। एक दिन जब अब्बा वापिस आए तो उनके साथ जो सरप्राइज था उसे देखकर महरू की आंखें खुली की खुली रह गईं। शाबी, धीरे से होंठ हिले थे और शाबी भी उसे देखकर कम हैरान नहीं हुआ था। बेटा अपनी बहनों से मिलो, और मेहरू, नूर ये तुम्हारा भाई है शाबी। सगे सौतेले के झंझट में मत पड़ना, खून एक हो तो इन बातों की कतई अहमियत नहीं रहती। शाबी की उदास आंखों में भी चमक उतरी हुई। तमाम उम्र इसने जिन रिश्तों के लिए तरस से गुजारी थी वो सब कुछ इसे मिल गया था, और वो अपनी खुशकिस्मती पर क्यों ना नाजा होता। रात अफ्तारी के बाद खाने पर खासा एहतमाम था। अम्मा शुक्रगुजार थी, उनकी आजमाइश खत्म हो गई थी। खुदा अपने बंदों को आजमाता है और फिर इन्हें इन्हें इस तरह नवाज देता है कि दामन भर जाता है। तुम्हें पता है ना महरू, मेरी शादी हो रही है फिजा के साथ। खाने के बाद नूरी चाय बनाकर लाई तो शाबी भाई ने बताया। हैं, ये खबर उसके लिए नई और हैरान कुन थी। हाँ, ये इस औरत की इल्तिजा थी जिसने जिंदगी भर मुझे अजियतें दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटा सका। ईद के अगले रोज निकाह है मेरा फिजा के साथ। मेरा ख्याल था कि मुनीब ने तुम्हें इतला दी होगी। चाय के सिप लेते हुए वो धीरे धीरे बता रहा था। उनका तो फोन आए 1.5 माह से ऊपर हो चला। फिजा की शादी की खबर ने उसे दिली तौर पर पुरस्कून कर दिया था। अच्छा, शाबी भाई ने बेहद हैरत से कहा। वो तो कह रहा था कि बात अधूरी छोड़कर वो किसी गहरी सोच में गर्क हो गया। क्या कह रहे थे? उसने बेताबी से पूछा। कुछ नहीं, कल बताऊंगा। वो चाय का मग रख कर उठ गया। नूरी भी उसके पीछे गई थी, जबकि महरू वहीं बैठी गहरी सोच में गुम थी। दोनों चांद मुबारक, अच्छा हाँ, दोनों चांद मुबारक हों। नूरी ने उसके पहलू में नन्हे चांद को लटाते हुए उसके माथे पर प्यार किया। सुबह ईद होगी नूरी, वो उदासी से पूछ रही थी। मुनीब अहमद अब तक ना आया था, कैसा कठोर हो गया था। जाहिर है आज चांद रात है, सुबह ईद होगी। मगर तुम्हारी ईद तो दीद से मशरूत होगी, वो शरारत से मुस्कुराई। अंदर आ सकते हैं? आवाज थी कि जिंदगी का प्याम। उसने फौरन दरवाजे की सिम देखा। मुनीब अहमद मौजूद था। इतने दिनों की बेरुखी याद आई तो उसने फौरन मुंह मोड़ लिया। अब भी ना आता, बेटे से मिलने आया है, कौन सा मेरी जुदाई खींच लाई है। वो दिल ही दिल में सख्त नाराज थी। मैं तो समझा चांद आसमान पर ही निकला है, मगर भाई हमारा चांद तो इससे भी खूबसूरत है, वो मुन्ने पर झुका कह रहा था। ओहो, नाराजगी सरगोशी की। नूरी यार, ये कैसे मानेगी? उसने बेचारगी से पूछा। आपको पता होगा, बहरहाल जल्दी से मना लें, फिर हमें बाजार भी तो ले चलना है शॉपिंग के लिए। वो हंसी हुई बाहर चली गई। तो जाने मन महरून निसा, नूरे जहां, तुम्हारा जहांगीर तुम्हारे सामने दस्त बसता है, माफी का खास्तगार। तुम्हारा जहांगीर तुम्हारे सामने दस्त बसता है, माफी का खास्तगार। जान की अमान चाहता है। और बस भाई, पता नहीं कैसे माफी मांगते हैं यार, माफ कर दो। गलती तुम्हारी भी तो है ना। क्यों कहा था मुझसे बात नहीं करोगी? क्या? वो चौंकी। मैंने कब कहा था कि बात नहीं करूंगी? 2 माह से तो आपने फोन तक नहीं किया था, और अब इल्जाम लगा रहे हैं। 2 माह से मोहतरमा लगातार हफ्ते में एक बार फोन करता रहा हूँ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, और हर बार मोहतरमा का यही जवाब मिला है, मुझे फुर्सत नहीं है। क्या मैं सहाला से यही जवाब सुनने के लिए फोन करता था? सहाला से? हाँ, ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया हुआ था। आपसे जमीला आपा ने कहा होगा। नूरी की सारी बातें याद आ गईं, जिन पर वो यकीन नहीं करती थी। नहीं, उनकी बेटी साहिबा ने। वो तो और भी बहुत कुछ कह रही थी। बताऊं? बात अधूरी छोड़ दी, और आपने यकीन कर लिया उनकी बातों का? वो कबीदा खातिर हुई। मैं अगर उनकी बातों का यकीन करता महरून निसा,
تو آج تم اس مقام پر نہ ہوتی۔ انہوں نے تو شروع دن سے ہی مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، یہ کہ تم لڑکے پھانس لینے میں ماہر ہو۔ خیر اس خوبی کا تو میں بھی قائل ہو گیا ہوں، دیکھ لو کیسے میں پھنس گیا۔ حالانکہ ایک عدد منگیتر بھی موجود تھی میری، پھر بھی تم نے وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ منیب احمد وہ خفگی سے بولی، ہونٹوں پر کبھی ان کے میرا نام بھی آئے۔ وہ گنگنایا، آج مجھے بہت سی خوشیاں ملی ہیں مہرو نساء، اور سب سے بڑی خوشی تم نے مجھے دی ہے۔ اس نے مہرو کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے متعلق کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ باقی یہ کہ ہمارے درمیان ہمارا ماضی کبھی نہیں آئے گا، نہ ہی ماضی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی۔ میرا اشارہ جمیلہ آپا اور فضا کی طرف ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار، ایک دوسرے کے امین ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرنا، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا اعتبار کرنا ہے۔ اور بھائی باقی ڈرامہ کل بول لیجئے گا، ہمیں بھی اپنے بھتیجے کا دیدار کرنا ہے۔ ریتا نے کھڑکی سے سر نکالا تو دونوں ہنس دیے۔ اچھا باقی ڈرامہ پھر بولوں گا، ابھی تو اس نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے، ابھی تو چاند رات مبارک ہو آپ کو بھی، مہرو نے دھیرے سے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دباتا باہر چلا گیا۔ مہرو نے اپنے ساتھ لیٹے بیٹے کو دیکھا، بالکل منیب احمد کی کاپی تھا۔ اس نے اس کی چمکتی پیشانی پر لب رکھے، ایک آزودگی اس کے تن من میں پھیل گئی۔ ردا، ماریا، فوزیہ سبھی اندر آ گئے تھے اور مننے پر جھکے اسے پیار کر رہے تھے۔ ان سب کی محبتیں گواہ تھیں کہ اس کی زندگی میں بہار کا دریچہ کھل چکا ہے، آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں اور اگلی صبح اس کی زندگی کی روشن ترین صبح ہوگی۔ اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا، منیب احمد کھڑا اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اشارہ کیا اور اس نے شرما کر پلکیں جھکا لیں۔ ہونٹوں پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ منیب احمد کو بے چین کر رہی تھی، اور وہ ان سب کے باہر نکلنے کا منتظر تھا کہ اتنے دنوں کی جدائی کی پیاس بجھانے کے لیے کل کا انتظار بے حد مشکل تھا۔ یہ سٹوری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اچھی سٹوری تھی۔ اور جو یہ بی جمالو تھیں اس میں، جو بھی ان کا جمیلہ آپا تھیں، جو ان کا ہی انہوں نے کوئی بھی نہیں دکھائی کہ وہ چلیں تھوڑا بہت ایسا ہوتا نا کہ رائٹر یہ بھی لکھتی ہیں کہ ان کو بھی شرمندگی ہوئی ہے، کچھ ایسا ان کے بھی لیے لکھتی وہ۔ ویسے تو ریالٹی میں دیکھا جائے تو کبھی بھی کسی کو اپنی کسی بات پہ شرمندگی نہیں ہوتی مرتے دم تک، تو ایک طرح سے یہ ریالٹی کے زیادہ قریب لگتا ہے۔ لیکن کہانی کے اینڈ میں تو ایسا ہوتا ہی ہے نا کہ انسان کو اپنے کیے پہ تھوڑا بہت وہ پچھتاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اور اس کا انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں لکھا۔ اس کے علاوہ سٹوری اچھی تھی۔ آپ بھی بتائیے گا کہ سٹوری کیسی لگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔